Okay. So the same thing what we were doing in the linear regression, the same thing applies to each and every algorithm. And one of that thing is the overfitting or the underfitting. So same thing happens here. So how we are going to handle the overfitting? If your system is overfitting, that means there's a high variance, we are having too many features, and our model is very complex. That means your model is overfitting. So when a system is underfit, that is means you're having the high bias, your model is very simple, you have to make the model a little more complex, or you have to make more data. So this is the same thing. Okay, this first of the example is your logistic regression, where we are making the very simple model. So this is an example of high bias, because in this case you can see because we have made a very simple decision boundary. This is just a line. So that's why you can say here, because we have a bad prediction and many of the classification are being done incorrectly. Okay, so this is very simple model. This is a high bias. Okay, this is your underfit. This is your overfit. If we are going to make that's your theta tx और decision boundary का आप बहुत ज़्यादा कर्व कर दोगे, so this will become this is something like this. अभी आप क्या करेगा, each and every data को सही से क्लासिफाई करने के लिए आपके decision boundary को बहुत ज़्यादा कर्व कर देगा. उस केस में आपका ये डेटा जो होगा, आपका ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छे से काम करेगा, बट इट विल नॉट बी जनरलाइज मॉडल. जैसे ही आप अनसीन डेटा पे जाओगे, so it will give you start giving you an error. This is same thing, just like linear regression. So this is overfit. So you always have to take the trade-off between the overfitting and the underfitting, so that your model is generalized. So more or less it would work in the same way, okay, like it is working on the training data or the test data. It should not be like that कि training data पे आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है और testing data पे उसका score बहुत कम हो रहा है. That is not the generalized way. क्योंकि मेरा prediction मुझे अपना prediction unseen data पे ज़्यादा better तरीके से चाहिए. So that's why I go for the a generalized model, and generalized model is just a trade-off between the high bias and the high variance. Okay, that thing we have already discussed. So solution to overfitting आप पहले भी देख चुके हैं. Reduce the number of features. Okay, या फिर आप बहुत आपका सिस्टम ओवरफिटिंग है, या तो आप फीचर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, या बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा मॉडल कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, या फिर आपने बहुत आपके पास डेटा बहुत कम है. तो आप 3-4 काम कर सकते हो. फीचर्स अपने रिड्यूस कर दो. तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली अपने फीचर्स को कम और ज़्यादा करते जाओ. इसका हमने दो तरीके देखे थे. एक तो आपका फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड था, फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड, और बैकवर्ड सिलेक्शन मेथड, जिसमें हम मैनुअली काम करते हो कि कौन सी आपको चूज करनी है फीचर. और सेकंड आपका होता है मॉडल सिलेक्शन एल्गोरिथम, जिसमें कि आपका आपका मॉडल आपको बताता है कौन से फीचर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ उन्हीं फीचर्स को यूज कर लेते हो, बाकी को ड्रॉप कर लेते हो. तो इसमें आपका यूज होता है डिसीजन ट्री, जो हम आगे पढ़ेंगे. तो डिसीजन ट्री इज यूज्ड एज ए मॉडल सिलेक्शन एल्गोरिथम. ओके, सो अनदर टेक्निक इज जो रेगुलराइजेशन, जो हम लीनियर रिग्रेशन में भी कर रहे थे. इन द सेम वे, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी यूज होती है. यहाँ पर आपका लिज, रेसो और जो बाकी का था, तीनों तरीके आपके यहाँ पर भी यूज होते हैं आपको रेगुलाइज करने के लिए. ओके, एक थर्ड होता है जो आपके यहाँ पर मेंशन नहीं है, दैट इज गेट मोर डेटा. जितना आप उसको ज्यादा डेटा दोगे, उतना ज्यादा जनरलाइज पैटर्न को लर्न करेगा. ओके, सो इफ यू डोंट हैव द मोर डेटा, ट्राई टू ग्रैब द मोर डेटा एज मच एज पॉसिबल, जिससे कि आपका मॉडल जनरलाइज बनेगा. ओके, सो दिस इज योर रेगुलाइज एक्सप्रेशन. बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने लीनियर रिग्रेशन में किया था. हमने एक टर्म वहां पर ऐड कर दी थी, दिस थिंग. बिल्कुल सेम हम यही टर्म हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे. ओके, ओके, और ये आपको इसको रेगुलाइज कर देगी. दिस इज योर रेगुलेशन हाइपर पैरामीटर, जो बेसिकली आपका डिसाइड करता है कि आप अपने मॉडल को कितना ज़्यादा रेगुलाइज करना चाहते हो. आप उसको हाईली पेनलाइज करना चाहते हो कि आप उसको कम पेनलाइज करना चाहते हो. अगर उसको हाईली पेनलाइज करोगे तो बेसिकली आपका मॉडल सिंपलर और सिंपलर होता चला जाएगा. ओके,
So this is a hyperparameter. You can try with different values over here, so that, and you can just you can try different values, and you can go for the, what you can say, model validation techniques. Okay, and after that you can compare your different models created. Okay, फिर जिस वैल्यू के साथ आपका मॉडल ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा होगा उस वैल्यूज को लैम्डा किया फाइनल कर दोगे. ओके, सो मॉडल वैलिडेशन टेक्निक्स आपने पढ़ी थी. ओके, जिसमें कि आपकी कौन कौन सी सिलेक्शन, आपकी कौन सी टेक्निक थी, मैं नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम था जिसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट केस स्लॉट्स बनाते थे, व्हाट वाज द नेम? के के स्लॉट्स बनाते थे, के फोल्ड वैलिडेशन. यस एग्जैक्टली, के फोल्ड वैलिडेशन. तो आप डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा की वैल्यूज लोगे. चलो, नाउ माय क्वेश्चन इज हियर, के फोल्ड वैलिडेशन क्या काम करता है? सर वो पूरे डेटा सेट को के फोल्ड्स में बांट देता है और हर इटरेशन में इट टेक वन फोल्ड टू टेस्ट टू वैलिडेट द डेटा एंड के माइनस वन फोल्ड्स टू ट्रेन द डेटा. तो उसके बाद आपके कितने मॉडल बनते हैं? सर के मॉडल्स बनते हैं. फाइनलाइज किसको करते हो? ये मैंने उस दिन बताया था. सर फाइनलाइज तो एवरेज एरर निकल के आता है ना उनका, जो भी एरर आपके जिसका पास एवरेज एरर आ गया तो आपके पास 10 मॉडल उसने बनाए थे और तो 10 मॉडल बना के देगा आपको. ठीक है, उस 10 मॉडल से वो सब हर मॉडल्स की ईच एंड एवरी मॉडल्स की आपको एक्यूरेसी देगा, ईच एंड एवरी मॉडल्स की आपको एरर देगा. ठीक है, राइट, ऐसे ही करता है ना वो. हाँ जी. तो उसके बाद आप मुझसे मॉडल कौन सा सिलेक्ट करोगे, फाइनल मॉडल कौन सा बनेगा आपका? जिसमें सबसे कम एरर होगी. तो लेकिन ऐसे तो काम नहीं करता, आपको तो अलग अलग मॉडल बना के नहीं देता है. तो के फोल्ड वैलिडेशन का यूज क्या है फिर? क्या आप के फोल्ड वैलिडेशन के थ्रू मॉडल सिलेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? आपने के फोल्ड वैलिडेशन यूज किया अभी तक कोड में या नहीं किया? नहीं सर, के फोल्ड नहीं किया हमने, सीधा वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था बस. के फोल्ड वैलिडेशन आपने लीनियर रिग्रेशन में यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया? थ्योरेटिकल तो आप लोगों ने पढ़ा था, नेट पे सर्च करते उसको अप्लाई करते. ओके, कोई बात नहीं, लॉजिस्टिक में कर लेंगे हम उसको, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो के फोल्ड वैलिडेशन में एक्चुअली बेसिकली आपका मॉडल सिलेक्शन टेक्निक नहीं है वो. ऐसा नहीं है, आपको आप बेसिकली दैट इज मोर लेस आपकी फीचर सिलेक्शन एल्गोरिथम की तरह काम करता है मॉडल, आपका जो के फोल्ड एल्गोरिथम होती है. जब आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट हाइपर पैरामीटर यूज कर रहे हो, सो बेसिकली वो आपको एक अच्छा आइडिया देता है कि बेसिकली ऑन एन एवरेज आपका मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है. जैसे कि आपने लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके लैम्डा की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ. सो आप क्या कर सकते हो, लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट 3 या 4 वैल्यू लेके या 5 वैल्यू लेके आप डिफरेंट डिफरेंट आप क्या करोगे, डिफरेंट आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करो. लैम्डा की वैल्यू चेंज करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसका के फोल्ड वैलिडेशन करोगे. अगर आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करते हो तो उसका ट्रेनिंग स्कोर देखोगे, फिर टेस्ट स्कोर देखोगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, तब आपको पता लगेगा कि मेरा लैम्डा एक्चुअली में ट्रेनिंग और टेस्ट पे कैसे काम कर रहा है. तो आपका जो ये आपका प्रोसेस होता है वो बेसिकली आपका प्रोलॉन्ग हो जाता है. तो उस प्रोसेस को आपको छोटा कर देता है आपका के फोल्ड वैलिडेशन. उसमें आपका ट्रेनिंग और टेस्टिंग वो फटाफट पूरे सेट पे एक साथ आपको करके दे देता है और आपको ऑन एन एवरेज बता देता है कि आपका मॉडल जनरली कैसा काम कर रहा है, अगर आप उसको ट्रेनिंग और टेस्ट में लेके जाओगे तो. So, अगर आप लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेक करना चाहते हो तो आप लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेंज करते जाओ और उससे क्रॉस रिलेशन करते चले जाओ. तो आपको बता देंगे लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे आपका मॉडल ऑन एन एवरेज ट्रेनिंग और टेस्ट पे कैसा काम कर रहा है. और जिस लैम्डा के लिए आपका मॉडल ऑन एन एवरेज सबसे अच्छा काम कर रहा होगा उस लैम्डा को लेके फिर आप अपना फाइनल मॉडल बनाओगे. तो के फोल्ड वैलिडेशन आपको कोई मॉडल बना के नहीं देगा, वो आपको बताएगा कि ऑन एन एवरेज जो आपने हाइपर पैरामीटर चूज किए हैं उसके बेसिस पे ऑन एन एवरेज का मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है. तो जिस कॉम्बिनेशन के लिए आपका स्कोर सबसे अच्छे आ रहे हैं केक फोल्ड वैलिडेशन के, उन सब पैरामीटर्स को लेके फिर फाइनली अपना मॉडल आप जनरेट करोगे अलग से और वो फिर आपका फाइनल मॉडल बनेगा. तो दिस इज हाउ के फोल्ड वैलिडेशन वर्क्स. ओके, कोई कंफ्यूजन? गुड, सो लेट्स गो फॉरवर्ड. सो दिस सेम थिंग लेज रेशो पहले ही पढ़ चुके हैं. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने देखा उसकी हाइपोथेसिस देख ली हम लोगों ने. ओके, हमने इसका
कॉस्ट फंक्शन भी देख लिया. ओके, नाउ व्हाट एल्स? हाँ, ठीक है. सो अब आपने मॉडल बनके आपका तैयार हो गया. ठीक है. सो नाउ हाउ विल यू इवेल्युएट योर मेथड मॉडल, कि आपका मॉडल कितनी एक्यूरेसी पे काम कर रहा है. यू नीड ए मॉडल मेट्रिक. सो लीनियर रिग्रेशन में आपके क्या क्या मेट्रिक थे, बताओ जल्दी. नहीं है, बताओ क्या मेट्रिक थे हमारे लीनियर रिग्रेशन में. सर एक लिस्ट करो, उसके बाद बता दूंगी. एक लिखना एक बार. कौन बताएगा मुझे? पीयूष बताइए कौन कौन से मेट्रिक थे हमारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स. मेट्रिक कौन से थे हमारे लीनियर रिग्रेशन में? Sorry, can you repeat the question, Ajay? My question is that what are the my evaluation metric, ठीक है, for the linear regression, कि मेरा मॉडल कितनी एक्यूरेसी पे काम कर रहा है, कैसे जज करोगे आप? आपके पास यू शुड हैव एन इवैल्यूएशन मैट्रिक. हमारा मैट्रिक क्या था लीनियर रिग्रेशन? हम उसका स्कोर चेक करते हैं ना सर. आर स्कोर. यस, हमारे पास आर स्क्वायर था, हमारे पास एमएसई था, और हमारे पास और क्या था, एडजस्टेड आर स्क्वायर था. ओके. सो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मेट्रिक होते हैं. क्लासिफिकेशन आप देखोगे तो बहुत सारे मेट्रिक होते हैं, बहुत सारे मेट्रिक यूज होते हैं. दिस इज one of them is accuracy, second is precision, recall, F1 score. रिग्रेशन में आपके होते थे MSE, R2 स्कोर, ये सर आपके रिग्रेशन में काम करते हैं. ओके. तो क्लासिफिकेशन आपके बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे आपके डिफरेंट आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सॉरी तो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के और आपके बिजनेस यूज केस पे डिपेंड करता है कि बेसिकली आप कौन सा मेट्रिक आप यूज करोगे. सो यू हैव टू वेरी इंटेलिजेंटली यू हैव टू सेलेक्ट योर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. अगर आप सही से चूज नहीं करते हो, सो यू विल बी बिल्डिंग अ रॉन्ग मॉडल फॉर योरसेल्फ. ओके. सो नाउ वी विल गो वन बाय वन. ओके. सो नाउ concentrate, क्योंकि दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट. ओके, यू विल गेट कंफ्यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली. ओके. So this is called your confusion matrix. इसका नाम भी confusion matrix है क्योंकि इसमें बहुत confusion होता है. Okay? So कुछ भी चीज अगर समझ में आपको नहीं आएगी, so just let me know. Okay? Okay. So this is our confusion matrix. हम बनाते हैं बेसिकली आपके मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए. Okay? So this is my actual values. Actual data में मेरा रिकॉर्ड का लेबल कैसे है, 1 है या 0 है. Fine. So this is my prediction कि मेरा मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, उसको 1 प्रेडिक्ट करेगी, 0 प्रेडिक्ट कर रहा है. तो मेरे ये 2x2 का मेरा मैट्रिक्स है. ओके. 2x2 का मैट्रिक्स हो गया मेरा ये. दिस इज 2x2 मैट्रिक्स. ओके. दिस इज माय एक्चुअल एंड दिस इज माय प्रेडिक्टेड 1 और 0. दिस इज कॉल्ड माय 101. दिस इज 1 और 1. दिस बॉक्स इज 1 to 1 मींस मेरा डेटा भी एक्चुअली में उसके लेबल भी 1 था और मेरे मॉडल ने भी उसका 1 ही प्रेडिक्ट किया है. राइट. सो दैट इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव. दिस इज ट्रू पॉजिटिव. ओके. दिस इज 0 और 1, यानी कि मेरा डेटा एक्चुअली लेबल था 0, यानी दैट वाज नेगेटिव क्लास, लेकिन मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया पॉजिटिव क्लास. दैट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहा है. एक्चुअली पॉजिटिव है नहीं, लेकिन मेरा मॉडल उसको पॉजिटिव बता रहा है. सो इट इज अ फॉल्स पॉजिटिव. ओके. नाउ कम टू थर्ड बॉक्स. दिस इज 0, दिस इज 1 और 0 मींस एक्चुअली मेरा मॉडल एक्चुअली में 1 था, लेकिन मेरा मॉडल उसको 0 प्रेडिक्ट कर रहा है. इसका मतलब वो इसको नेगेटिव बता रहा है. तो दैट इज एक्चुअली फॉल्स नेगेटिव. एक्चुअली इट इज नॉट नेगेटिव, बट माय मॉडल इज प्रेडिक्टिंग दिस नेगेटिव. So it is a false negative. Okay. The last model box is 0 or 0. यानी कि 0 था और 0 इसको प्रेडिक्ट कर रहा है. So that is a true negative. Perfect. कितना आसान है ना? So this is true positive, false positive, false negative and true negative. Okay. अभी तक सब ठीक है. This is called a hit. अगर आप ऐसे समझना चाहते हो, this is a hit. This is false alarm. This is a miss. This is a correct rejection. आप ऐसे भी समझ सकते हो. ओके. जैसे भी आप समझना चाहो. ओके. सो लेकिन इसके आगे जो साइड टर्म्स यूज होंगे आपके ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव, आगे साइड टर्म्स आगे की
20 स्लाइड्स में सिर्फ यही टर्म यूज होंगे, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो बेटर आप जहां भी बैठे हुए हैं अपने आसपास अपनी नोटबुक में ये डायग्राम बना लो, अदरवाइज वी हैव टू गो बैक टू स्लाइड्स अगेन एंड अगेन। ओके, तो आप जहां भी बैठे हो ये डायग्राम आप बना लो एक बार। When we are done, let me know. Okay. So we are done. Done. Doing. Hold on. Okay. So when you are done, gives me high five. Okay. Sure. Done. Thank you. सबका हो गया? Yeah, almost. Okay. अगर किसी को इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। And what about partial, like it is 0 and 1 completely? What about say 0.6, 0.7? नहीं, ये हमारी फाइनल प्रेडिक्शन की बात चल रही है। जब हमने फाइनल प्रेडिक्शन कर दिया है, थ्रेशोल्ड हमने कुछ भी लियो, थ्रेशोल्ड हमने 0.5 लिया तो फाइनली आपका आउटपुट 0.5 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी को 1 दिखा देगा, उससे वो 0 दिखा देगा। तो थ्रेशोल्ड इज डिफरेंट थिंग। हम फाइनल आउटपुट की बात कर रहे हैं कि उसने किसको पॉजिटिव दिखाया, किसको नेगेटिव दिखाया, इन रिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड आप सेट करोगे, उसके बाद जो फाइनल प्रेडिक्शन आएगा उसके ऊपर आपका ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा। ओके Okay. So I assume that all of you are done. Let's move ahead. Okay. ये भी सेम चीज है, ये रिवर्स है, डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। सबसे क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स जो है एक्यूरेसी, बहुत सिंपल है। एक्यूरेसी आपका क्या करता है कि आपने कितने करेक्टली प्रेडिक्ट किए हैं आउट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। ओके, यानी कि बेसिकली आपने कितने ट्रूली, आपने कौन कौन से ट्रू किए हैं। आपने ट्रू पॉजिटिव ट्रू किया है, राइट, आपने ये सही प्रेडिक्ट किया है और आपने ये सही प्रेडिक्ट किया है। ओके, सो आपकी एक्यूरेसी मैट्रिक्स हो जाएगा आपका ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय टीपी प्लस एफपी प्लस एफएन प्लस टीएन। This is your accuracy. Let's say for example I have 1000 records. Okay, आपने ट्रू पॉजिटिव आपने दे दी, लेट्स से उसको इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं, अगर if it allows me. And how we will know that whether this is false? How many of them are false negative and how many are false positive? आपका कंपैरिजन करेगा ना, जैसे कि आपने लेट्स से आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स थे, आपने 1000 रिकॉर्ड्स में आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग डाटा की लेवलिंग पता है, प्रेडिक्शन करने के बाद उसने ऑलरेडी उसकी लेवलिंग कर दी है, तो आप उसको कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ट्रू था, ट्रू बताया कि नहीं बताया, तो ऑलरेडी कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास बन के आ जाएगा। No, when you say compare, is it with say test data or it is manually done? नहीं, वो बिहाइंड द सीन सब आपका हो जाता है। जैसे आपने ट्रेनिंग डेटा में मॉडल अपना आप ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, मॉडल पे आपने ट्रेन किया, मॉडल बनकर तैयार हो गया, तो आपको आप अगर इस पे टेस्टिंग में स्कोर निकालना चाहते हो, टेस्टिंग में आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के दिखा देगा कि टेस्टिंग का एक्चुअल लेवल ये था, आपका मॉडल ये प्रेडिक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपका बन के आ जाता है। ओके, आप ट्रेन पे करना चाहो आपको ट्रेन पे दिखा देगा, जिस भी डाटा सेट पे आप करना चाहोगे उसको आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिखा देगा बना के कि ये एक्चुअल था और ये आपका मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, so it is not allowing me to change the color. Okay. Ajay, so on the then this testing data also and training data also, this will give us this graph.
So basically, after modeling on the training data, also this will give us this stuff. So can we compare the accuracy of both the trained data and the test data to check whether our graph, our model is generalized or not? यहाँ से आपको compare जनरलाइज, the accuracy in this case. वही मैं कह रहा हूँ कि आपको बेसिकली यहाँ से बहुत सारे मेट्रिक होते हैं, जैसे एक्यूरेसी मेट्रिक है वन ऑफ देम। एक्यूरेसी मेट्रिक आप सिर्फ सिंपल ये बता देता है कि बेसिकली आपका कितने, आपने बहुत सारे भी मेट्रिक आगे पढ़ेंगे। सो बिजनेस यूज केस टू बिजनेस यूज केस डिपेंड करता है कि बेसिकली आप कौन सा यूज करोगे। ओवरफिट तो आपका सिंपली ये हो गया कि बेसिकली आपने एक्यूरेसी मैट्रिक्स बनाया, ठीक है ना, लेट्स से आपने एक्यूरेसी को ही अपना मेट्रिक आप मान के चल रहे हो, ठीक है, और ट्रेनिंग में आपने उसको मॉडल का टेस्ट किया और ट्रेनिंग डेटा पे आपने उसकी एक्यूरेसी निकाली, तो आपकी बहुत हाई आ रही है। फिर आपने टेस्ट पे उसको निकाला, टेस्ट पे उसकी एक्यूरेसी कम हो गई, तो इसका मतलब आपका मॉडल ओवरफिट है। ओके, सिंपली। सो अगर आपने एक्यूरेसी उसकी ट्रेनिंग में भी कम आ रही है, टेस्ट में भी कम आ रही है, इसका मतलब नाउ इट इज अ अंडरफिट मॉडल। आपकी दोनों की ऑलमोस्ट सेम आ रही है, तो इसका मतलब आपका मॉडल इज जस्ट फिट। ओके, सो मेट्रिक आप कोई से भी चूज कर सकते हो, उसके स्कोर के बेसिस आप जज कर सकते हो ट्रेनिंग और टेस्ट को कैसा बिहेव कर रहा है। ओके, सो एक्यूरेसी इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन। ओके, okay, so let's say I have 1000 examples, so let's में true positive आपके जाते हैं, let's say ये जो actual थे और उसने actual बताया, let's say I will take this as a 400, okay, true negative आपके let's say 300 थे, और इसको 400 को मैं 300 का देता हूँ for example, okay, और आपके let's say 1 थे उसको 0 प्रेडिक्ट कर रहा है, let's say 1 थे और 0 प्रेडिक्ट कर रहा है, मैंने इसको मान लिया let's say 180, ओके, कितने बचे आपके बाकी? 7, 120 आपके आ गए, 1 नेगेटिव में। सो इस केस में आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी? आपकी एक्यूरेसी होगी 470 डिवाइड बाय 1000, तो आपकी आगे एक्यूरेसी 0.7, या कि आपके बेसिकली आपके 70% एक्यूरेसी में आपका मॉडल काम कर रहा है। ओके, वेरी सिंपल मेट्रिक। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्लाइड। सेकंड, अब यहाँ से आपका कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। ओके, सो द सेकंड वन इज सेंसिटिविटी और रिकॉल, जिसको हम सेंसिटिव बोल सकते हैं और रिकॉल बोल सकते हैं, दोनों टर्म्स के लिए यूज होती हैं। तो सेंसिटिविटी इज योर ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस फॉल्स नेगेटिव। दिस इज योर रिकॉल, यानी कि बेसिकली आपका मॉडल कितना सेंसिटिव है पॉजिटिव केसेस के लिए। यानी कि अगर हम यहां जाएं, दिस इज योर रिकॉल, यानी मेरा रिकॉल बेसिकली है क्या? व्हाट इज माय रिकॉल? ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो इस केस में रिकॉल कितना होगा मेरा? 400 by 520, तो दिस इज माय रिकॉल। ओके, सेकंड टर्म आती है आपकी प्रिसीजन। Okay, so recall what actually it means basically. So अभी उस पर ही पहुंचते हैं, पहले मैं रिकॉल और प्रिसीजन दोनों लिख देता हूँ। दिस इज योर प्रिसीजन, प्रिसीजन इज योर ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, दैट इज, ये आपकी वैल्यू आएगी 400 डिवाइड बाय 580। ओके, सो दिस इज योर प्रिसीजन, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, जिसको प्रिसीजन या स्पेसिफिसिटी बोलते हो। सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, रिकॉल ऑफ प्रिसीजन। हाँ, तो अब आप मुझे बताओगे कि रिकॉल मुझे क्या बता रहा है? हाँ, कौन बताएगा मुझे? बिल्कुल सिंपल सी टर्म में मैंने सामने लिख दिया है, ठीक है ना। ट्रू पॉजिटिव एक्चुअली क्या सिग्निफाई कर रहा है मेरा यहाँ पे? रिकॉल क्या सिग्निफाई कर रहा है? सर रिकॉल में मतलब बेसिकली अगर हम रिकॉल और प्रिसिजन दोनों देखें तो उसका जो सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू है कि वन अगर है, कोई भी चीज ट्रू है और उसको हम ट्रू प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और उसी वैल्यू को हम दो नजरिए से देख रहे हैं, एक एक्चुअल डेटा के टर्म्स में और एक प्रिडिक्शन के टर्म्स में, मगर हमारा सेंटर पॉइंट तो ट्रू पॉजिटिव ही है, मतलब उनको नेगेटिव वाले से ज्यादा मतलब नहीं है दोनों केस में, एंड एवरीथिंग इज रोटेटिंग अबाउट 1/1। यहाँ तक भी ठीक है मुझे। So basically और it आप is दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से
It's like basically in comparison. Recall is showing Sorry. कि positivity और total positive कितने हैं जितने होने चाहिए एक्चुअल में. नहीं फिर से बताओ. Basically रिकॉल कितना bias है toward the positive things. हाँ रिकॉल की basically बात. हाँ बताओ. Yeah. So basically it is showing you the basically the success rate out of the total positive. So may help you to make a decision on the recall or something like that. For example, like you make 100 cars and all the 100 are supposed to be good, but out of that there are let's say there are 10 cars which had some fault. So your what is your recall? So in this case, you will say out of 100, all have to be successful, but 90 are success. So 10 is your failure ratio. Okay. So sir, we can also say that it is making some ratio of the true positive around the actual and the predicted value. Okay. इस केस में मेरे अच्छा बताओ, इस पूरे केस में मेरे एक्चुअली 1 कितने थे जो मेरे लेबल डाटा था? 1 कितना था? 620, 520. 520. Yeah. और मेरे मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया है? 400. तो एक्चुअली मुझे क्या बता रहा है? ये सिर्फ ये बता रहा है कि बेसिकली आउट ऑफ जो एक्चुअल मेरे पॉजिटिव थे, मेरा मॉडल उसमें से कितने पॉजिटिव कर पा रहा है, मतलब कितना वो बेसिकली सेंसिटिव है पॉजिटिव केसेस के लिए, कि टोटल कितने मेरे पास एक्चुअली पॉजिटिव थे और मेरा मॉडल एक्चुअली में पॉजिटिव कितना सेंसिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव बता पा रहा है. यानी basically it is the accuracy of positive cases. Yes, कि मेरा मॉडल बेसिकली कितना एक्यूरेट है पॉजिटिव को पॉजिटिव बताने में. बिल्कुल सिंपल सा है कि मेरा मॉडल एक्चुअली में पॉजिटिव को पॉजिटिव बताने के लिए कितना सेंसिटिव है. क्योंकि टोटल 520 मेरे पास एक्चुअल केसेस थे, मेरा मॉडल उसमें से आउट ऑफ 520 400 को सही प्रेडिक्ट कर पा रहा है. सो माय मॉडल इज एक्चुअली माय मॉडल की जो रिकॉल है, ये सेंसिटिविटी है, वो मेरा इस फॉर्मूले के थ्रू आ जाती है कि एक्चुअली पॉजिटिव को पॉजिटिव बताने में कितना सेंसिटिव है. सिंपल. ओके. पॉजिटिव को पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर पाने के लिए कितना सक्षम है, हाउ मच इट इज एफिशिएंट. ठीक है. अब हम आते हैं प्रिसीजन में. प्रिसीजन क्या बता रहा है? बिल्कुल जैसे मैंने बताया, इसी सिंपल टर्म में क्या बता रहा है प्रिसीजन? मेरा मॉडल कितने को ट्रू बता रहा है, बट एक्चुअली उसमें कम ट्रू है. ओके. बट सर नीचे डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, 580 हो गया, मतलब इसमें तो वो बढ़ा ही रहा है. Yeah, so basically my model is saying that 580 are true, but in actual there are हमारे डेटा पे है ना, डेटा को तुम रिवर्स भी कर सकते हो, 180 को 120, 120 को 180. so this is just random data. नहीं, रैंडम डेटा नहीं है, तो आपका एक्चुअल डेटा है ना, जो इसमें जो आपका लेबल था, आपने जो प्रेडिक्शन किया, इससे एक्चुअल डेटा कमिंग ऑन योर फेस. इसमें रैंडम कहां है? No, I am saying 180, 120 जो हमने लिखा है तो हमने रैंडमली लिख दिया है ना. रैंडमली तुमने लिख दिया, मानो कि एक्चुअल डेटा आपके सामने, एक्चुअल डेटा निकल के आया. दिस एक्चुअल डेटा. अभी जो आपका मॉडल प्रिसीजन क्या बता रहा है आपका? रिकॉल हमने सेंसिटिव समझ में आ गई. सेंसिटिव में सिर्फ बता रहा है कि पॉजिटिव केसेस कितना सेंसिटिव है. प्रिसिजन अपने को ये बता रहा है कि एक्चुअली माय डेटा इज प्रेडिक्टिंग ऑल दीस केसेस टू बी ट्रू, मॉडल इज प्रेडिक्टिंग इट टू बी ट्रू, बट इन एक्चुअल 400 cases which are true, so 180 cases it is predicting wrongly. हाँ और कोई? Anyone else? अगर हम डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो like 60. डिनोमिनेटर को छोड़ो, आप सिर्फ ये बताओ कि सिंपल टर्म में मुझे क्या बता रहा है. दीपा आप बताओ क्या कहना चाह रहा है ये प्रेडिक्शन, या आपको प्रिसीजन क्या कहना चाह रहा है? So basically it is trying to tell me how accurate it is in identifying the positives basically. नहीं, वो तो आपका रिकॉल है. तो प्रिसीजन का मतलब तो यही होता है कि जो हमारा एक्चुअल डेटा है उसमें से कितना डेटा हम प्रिसाइजली ठीक से ले पा रहे हैं. कहाँ ले पा रहे हैं? मतलब कितना एक्चुअल में प्रेडिक्ट हो रहा है सही डेटा. नहीं, ये तो मुझे नहीं बता रहा ये. नहीं, तो बेसिकली इसने 400 बताया सही और 180 बताया फॉल्स. Basically it is giving us the accuracy of the prediction. नहीं, of positive cases. नहीं. can I हाँ बिल्कुल सर, कितने पॉजिटिव हैं और टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्टेड में से? यस. ओके. हाँ, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या कहना चाह रहा है.
सर मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली मेरा मॉडल जो प्रेडिक्शन मार रहा है पॉजिटिव की, मेरा एक्चुअल मॉडल कितना प्रेडिक्ट कर रहा है, मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है 580। ओके, तो मेरा जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसमें से एक्चुअली में कितने पॉजिटिव हैं, इसलिए क्योंकि मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है 580 और उसमें एक्चुअली मेरे पॉजिटिव कितने 400। सो मेरा मॉडल एक्चुअली कितना प्रिसाइज है ये बताने के लिए कि बेसिकली जो मेरा प्रिसीजन कितना है, जितना पॉजिटिव बता रहा है उसमें एक्चुअली में कितने पॉजिटिव है, पॉजिटिव बता रहा है 580, उसमें से पॉजिटिव है लेकिन सिर्फ 400, तो माय मॉडल इज प्रिसाइज ओनली अबाउट 400 ओनली। सो मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि जितने उस मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है उसमें से एक्चुअली में कितने पॉजिटिव थे। मेरा मॉडल बता रहा है 500 और एक्चुअली में उसमें से 400 पॉजिटिव थे, ये बता रहा है सिर्फ मुझे प्रिसीजन। तो प्रिसीजन रिकॉल मोर और लेस बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, ठीक है ना। रिकॉल मुझे ये बताता है, रिकॉल मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि जो ये पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव कितने प्रेडिक्ट कर 400, ओके। सो और एक्चुअल में कितने थे 520, तो 520 में से कितने सही प्रेडिक्ट कर पा रहा है, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है, वो आपका रिकॉल है, ठीक है ये, ओके। प्रिसीजन आपका क्या है कि जितने ये पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ओके, कितने प्रेडिक्ट कर रहा है 400, तो एक्चुअल में उसमें से कितने पॉजिटिव थे, 580 बता रहा है आपके, लेकिन 580 में से एक्चुअली 400 आपके थे एक्चुअली में, 180 आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव केसेस उठा के लाया ये। सो दैट इज योर प्रिसीजन। नाउ टेक 2 times of yourself and try to imbibe that concept, okay, because it is going to get confused, आप और ज्यादा कंफ्यूज हो गए जैसे हम स्लाइड में आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो प्रिसीजन और रिकॉल सिर्फ यही है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। Take 2 times of yours, okay, जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको बताया आप वैसे ही समझो, आपको जिससे समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आपके सामने है, जिससे आपको समझ में आ रहा है उससे आप समझ लो, ठीक है ना। अल्टीमेटली आप जैसे समझोगे फॉर्मूले के हिसाब से आप सही समझोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है क्या ये? बिल्कुल पूछा जाता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनवा लेंगे वो। अच्छा, Simple ways to learn is one is horizontal, one is vertical. हाँ एग्जैक्टली। तो अब तो दिस इज वन ऑफ द 2 मैट्रिसेस, प्रिसीजन एंड रिकॉल। यहां तक सब ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड विल ट्राई टू इम्बाइब दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब लास्ट आता है आपका F1 स्कोर। हमने 3 मीट्रिक देखे, एक्यूरेसी देखी, सेंसिटिविटी और रिकॉल देखा और प्रिसीजन देखा। नाउ वी विल गो टू द F1 स्कोर। F1 स्कोर बेसिकली क्या करता है, आपका प्रिसीजन और रिकॉल को कंबाइन कर देता है। Related to a specific positive class, the F1 scores can be interpreted as a weighted average of precision and recall. तो ये वैसे प्रिसीजन रिकॉल का आपको वेटेड देता है, क्योंकि जनरली बहुत सारे केसेस में आप सिर्फ रिकॉल यूज करते हो, बहुत सारे केसेस में आप प्रिसीजन यूज करते हो। तो हम आगे देखेंगे किस केस के लिए आपको रिकॉल देखना है, किस केस के लिए आपको प्रिसीजन देखना है। F1 स्कोर आपको बेसिकली मोर और लेस आपको एक एवरेज वैल्यू बता देता है कि आपका मॉडल ऑन एन एवरेज प्रिसीजन और रिकॉल दोनों के लिए कैसे काम कर रहा है, ओके। तो इसकी वैल्यू आपकी, अगर आपकी वैल्यू 1 है तो आपका बहुत परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर 0 है तो आपका बेसिकली बहुत खराब काम कर रहा है। तो अब हम वापस जाते हैं स्लाइड पे। तो अगर मेरा मॉडल अगर सही काम कर रहा है, ठीक है, मोर और लेस मान के चलते हैं, मैं रिकॉल हाई होना चाहिए, रिकॉल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अगर मैं मॉडल को अच्छा मानता हूं तो। रिकॉल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए सर। रिकॉल की वैल्यू मेरी ज्यादा होनी चाहिए, राइट, क्योंकि ट्रू पॉजिटिव मेरे हमेशा ज्यादा, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू गो फॉर द ट्रू पॉजिटिव केसेस में, क्योंकि हमें न्यूमरेटर बड़ा चाहिए डिनोमिनेटर से। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो बिकॉज हम ट्रू पॉजिटिव देख रहे हैं दोनों ही केसेस में, प्रिसीजन में भी रिकॉल में भी। अब हम जाते हैं केस बाय केस। अब सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। मेरे पास एक मेल है जिसको मैं क्लासिफाई करता हूँ स्पैम में और नॉन स्पैम में, जस्ट योर जीमेल, कि आपकी जो आपकी स्पैम मेल आती है आपकी स्पैम फोल्डर में चली जाती है, ओके, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। मैंने एक मॉडल बनाया है, जो मेरा मॉडल क्या करता है बेसिकली उसको स्पैम और नॉन स्पैम में क्लासिफाई कर देता है।
ओके मेरा स्पैम वाला जो केस है मेरा पॉजिटिव केस है, तो 1 ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मेरा 1 लिखा हुआ दैट इज योर स्पैम। मैंने जो मॉडल बनाया वो स्पैम के लिए बनाया है, ठीक है। स्पैम इज मेरा पॉजिटिव क्लास है, 0 मेरा नेगेटिव नॉन स्पैम क्लास है। ओके परफेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या जाना, अब मैं क्या करता हूं इस केस में, जब मैंने मॉडल बनाया मैंने स्पैम के लिए, ठीक है, स्पैम मेरी पॉजिटिव क्लास है, तो इस केस के लिए स्पेसिफिकली मेरे लिए कौन से फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा रिकॉल ज्यादा ही होना चाहिए या मेरा प्रिसीजन ज्यादा हाई होना चाहिए? मेरे लिए प्रिसीजन स्कोर मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे रिकॉल स्कोर ज्यादा चाहिए? तो प्रिसिशन ज्यादा होना चाहिए ऐसा लगता है मेरे को। नहीं देख लगना नहीं है, तो थोड़ा सोचो, इतनी जल्दी नहीं, ठीक है ना, पहले थोड़ा सोचो, ठीक है ना, कि बेसिकली स्पैम के लिए, जो स्पैम मेरा पॉजिटिव केस है, तो रिकॉल मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे प्रिसीजन ज्यादा चाहिए, सिंपल। Just take an example. Use your book and pen. Make your graph. Make your chart. ये आपके सामने ऑलरेडी बना हुआ है, आपके पास Yeah, so ये Ajay, we need precision more. You need, चलो मैं Precision should be high. यहाँ पे स्कोर बना लेता हूँ सबका, ठीक है ना। ये प्रिसीजन वाला ये लोग हैं और रिकॉल वाले ये लोग हैं। कौन कौन कहता है कि प्रिसीजन हाई होना चाहिए? Puneet, मैं। precision should be high. पुनीत, दीपा, I also say that. नेहा, और कौन? Yes, sir. Piyush है. पीयूष, परफेक्ट, कुलदीप. और कुलदीप. सर कुलदीप, सब प्रिसीजन कह रहे हैं, राइट? ओके कुलदीप, और कौन बचा? नदीम, तो स्टिल थिंकिंग। स्टिल थिंकिंग, ओके। सर मेरे को एक स्कोर चीज पे तो ज्यादा इसमें ध्यान जो जा रहा है मेरा। सर मेरे को एक चीज जो समझ आ रही है इसमें, वो ये है कि हो सकता है कि हमने इसको गलत प्रिडिक्ट कर लिया हो, बट द थिंग इज अगर मैं प्रिसिशन देखूं और रिकॉल देखो, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, द थिंग इज ऑन डिनोमिनेटर। अब अगर मेरा ट्रू पॉजिटिव दोनों में है डिनोमिनेटर में, द थिंग इज ओनली फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। नाउ टू सेव माय मेल इट इज ऑलवेज हेल्पफुल कि मैं फॉल्स पॉजिटिव अलार्म भी बजा दूं तो चलेगा, मतलब ऑन अ सेफर साइड। तो फिर ऐसे करके तो इसका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो प्रिसिशन कम हो जाएगी। मतलब फॉल्स नेगेटिव से ज्यादा अच्छा फॉल्स पॉजिटिव है कि नहीं है स्पैम लेकिन स्पैम पे चला जाए, उस बेहतर है मेरे मेल खराब करने से अच्छा, मतलब मेरा मेल बॉक्स खराब करने से अच्छा कि फॉल्स पॉजिटिव बच जाए। अच्छा इंपॉर्टेंट फॉल्स नेगेटिव बचेगा तो फिर प्रिसिशन कम हो जाएगा उस केस में। ठीक है नेहा, बिल्कुल मतलब अगर मैं वैसे सोचूं तो। अब हम लोग जाते हैं बिजनेस यूज केस पे। हमारा बिजनेस यूज केस है आपके लिए, इस बिजनेस यूज केस में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट मेल थी वो स्पैम मेल में चली जाए, मतलब मेल मिस नहीं होनी चाहिए कोई, या बेसिकली आपकी स्पैम मेल आपके नॉर्मल फोल्डर में आ जाए। कौन सा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है? हाँ उस पे डिपेंड करता है लास्ट चीज तो। मतलब स्पैम मेल अगर मेरे नॉर्मल फोल्डर में आ जाए तो मेरे को चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वाली मेल मेरी स्पैम फोल्डर में नहीं जानी चाहिए। बस परफेक्ट, नाउ यू अंडरस्टूड द यूज केस। आप उस यूज केस के हिसाब से बताओ कि विच वन, कौन से स्कोर, मुझे प्रिसीजन स्कोर ज्यादा चाहिए, मुझे रिकॉल स्कोर ज्यादा चाहिए। अब बिजनेस यूज केस आपने समझ लिया, फिर तो प्रिसीजन ज्यादा आएगा। ओके सो नाउ लेट्स गेट टू द फर्स्ट। हम लोग देते हैं रिकॉल। रिकॉल मुझे क्या बता रहा है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय फॉल्स नेगेटिव, यानी कि बेसिकली एक्चुअल मेरा 1 था, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, और मेरा डिवाइड में कर रहा हूँ ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये फॉल्स नेगेटिव मेरा क्या है? ये फॉल्स नेगेटिव मेरा बेसिकली वो मेल्स हैं जो मेरी बेसिकली स्पैम मेल्स थी और मेरी एक्चुअल फोल्डर में आ गई है, राइट? क्योंकि इसने 1 को 0 बता दिया है, ठीक है ना। तो ये मेरी स्पैम मेल्स जो मेरे एक्चुअल फोल्डर में मेरी आ गई है 120 मेल्स, ओके। अगर मेरा इसको ये बढ़ता जाएगा, ओके, सो मेरी मेल्स क्या होंगी? मेरी स्पैम मेल्स मेरी एक्चुअल फोल्डर में आती चली जाएंगी, बिल्कुल सिंपल है। अब प्रिसीजन में पहुंचते हैं। प्रिसीजन मेरा क्या लेता है? फर्स्ट पॉजिटिव, यानी कि बेसिकली वो 0 था उसको 1 बता रहा है, यानी कि बेसिकली मेरी एक्चुअल मेल थी और मेरी स्पैम फोल्डर में जानी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे मेरा स्कोर बढ़ा चला जाएगा 180, वैसे वैसे आई हैव ए प्रॉब्लम। और ये मेरे 180 मेरा कहां पे आता है? डिमोनिटर में, यहाँ पे आता है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू बढ़ेगा तो प्रिसीजन मेरा कम हो जाएगा। तो प्रिसीजन मुझे क्या चाहिए? मुझे कम चाहिए, प्रिसीजन कम चाहिए, रिकॉल ज्यादा चाहिए। एग्जैक्टली
क्योंकि बेसिकली मुझे ये 180 मुझे कम करना है, ये 180 आई वांट इट लेस, मुझे ये कम करना है, क्योंकि अगर ये जैसे बढ़ता जाएगा मेरी एक्चुअल मेल्स मेरी स्पैम फोल्डर में चलती चली जाएंगी, तो मुझे ये स्कोर कम चाहिए। ये उसको मुझे कम करने का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में आता है, तो ये बढ़ेगा तो मेरा प्रिसिजन कम होता चला जाएगा। सो आई वांट दिस प्रिसिजन लेस एंड आई वांट रिकॉल हायर। अब किसको ये समझ में नहीं आया या मैंने कुछ गलत बताया? हाँ तो सर आपको अगर फॉल्स पॉजिटिव कम चाहिए और आप कम पे टारगेट करोगे तो प्रिसीजन ज्यादा ही होगा। नहीं, फॉल्स मैं पॉजिटिव मतलब मुझे कम चाहिए। हाँ तो वो कम चाहिए और वो कम ही होंगे तो फिर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो प्रिसीजन ज्यादा होगा। हाँ उसका वो मतलब आपको सॉरी, प्रिसीजन ज्यादा चाहिए यस और एग्जैक्टली, आपको मुझे फॉल्स मुझे ये पॉजिटिव वैल्यू एक्चुअली कम कम करनी है, ये इसको मैं अगर कम करूंगा तो मेरा बढ़ता चला जाएगा। जस्ट मेरा रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है। अच्छा आप दूसरे मुझे बेसिकली कम चाहिए, मुझे फॉल्स पॉजिटिव मुझे क्या करना है, कम करने हैं, ठीक है ना? क्योंकि जैसे जैसे प्रिसीजन ज्यादा चाहिए। ये मेरी जैसे जैसे मेरी वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी बेसिकली, वैसे वैसे मेरी प्रिसिजन की हाँ प्रिसिजन हाँ मेरा कम तो होता आपको चला अगर जाएगा। फॉल्स पॉजिटिव ये मुझे कम कम करना करना है है। तो प्रिसीजन ज्यादा होगा। हाँ यस एग्जैक्टली, सॉरी माय बैड, वर्ड्स की डिफरेंस है। ये मुझे प्रिसिजन हाई चाहिए एंड द रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि मुझे ये वैल्यू कम चाहिए 180 वाली, ये मुझे कम चाहिए। इसका मतलब या मैं कम वैल्यू रखूंगा, जैसे मैं कम वैल्यू रखूंगी मेरी वैल्यू प्रिसिजन मेरा हाई होता चला जाएगा। सो आई नीड प्रिसिजन हाई एंड रिकॉल लेस, सॉरी। ओके, अंडरस्टूड? किसको कंफ्यूजन है इसमें अभी? सर एक डाउट है। हाँ बताओ। तो 1 जो था आपने बोला स्पैम है, राइट? हाँ अब फॉल्स पॉजिटिव जो है 1 को 0 बता रहा है, मतलब स्पैम को नॉन स्पैम बता रहा नॉर्मल मेल बता रहा है, राइट? तो मैं हाँ। मतलब स्पैम मेल को नॉर्मल फोल्डर में ले जाऊँ? हाँ, कौन से वाले बॉक्स से बात कर रहे हो? ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, कौन से वाले बॉक्स से बात कर रहे हो ये बताओ? फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव हाँ, ये है कि आपकी जो बेसिकली एक्चुअल मेल स्पैम मेल जो है वो एक्चुअल मेल को स्पैम बता रहा, ये वाला केस ना, ये वाला मेल, ये वाला बॉक्स आपका क्या कर रहा है? एक्चुअल मेल को आपका मतलब 1 को 0 बता रहे हैं ना, 1 स्पैम था तो उसको नॉन स्पैम बता रहा है। नहीं, 0 को 1 बता रहा है, आपकी बेसिकली नॉन स्पैम मेल को स्पैम बता रहा है। बट आपने बोला ना 1 स्पैम था। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। ठीक है ना? देखो ये वाला केस क्या है, ये वाला केस वो है बेसिकली जो बेसिकली आपकी जो आपकी नॉन स्पैम मेल थी उसको स्पैम बता रहा है, ठीक है? 0 यानी नॉन स्पैम मेल को स्पैम बता रहा है, ठीक है? तो नॉन स्पैम मेल अगर मेरी स्पैम होगी तो मेरी कहाँ चली जाएगी? ये स्पैम फोल्डर में चली जाएगी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? नॉन स्पैम को स्पैम बता रहा है ना, देखो नॉन स्पैम को स्पैम बता रहा है, हाँ तो कम चाहिए था। कम चाहिए ना। सो इसका मतलब मुझे हाई चाहिए, ओके। मैं इसको कम करना चाहता हूँ। अब हम दूसरा यूज केस लेते हैं। यह एक पहला यूज केस था जिसमें कि हम प्रिसीजन को हाई कर रहे थे, हम दूसरा यूज केस लेके चलते हैं। एक यूज केस हमारे पास, दूसरा यूज केस है हमारे पास, कहाँ गया? हाँ, सिक पेशेंट्स का, ठीक है, जिसमें कि हमारा बेसिकली उसको बताता है कि उसको बंदे को कैंसर है या नहीं है। और सिंपल सा हमारे पास जो केस है ये है हमारे पास, नहीं ये वाला केस, दैट इज बेटर कि ये वाला केस लेके चलते हैं। हमारे पास 100 पीपल है, 5 लोगों को सिर्फ कैंसर होता है। कितने लोगों को कैंसर होता है? सिर्फ 5% लोगों को जनरली कैंसर होता है, ठीक है, आउट ऑफ 100 पीपल। ओके, और मुझे क्या प्रेडिक्ट करना है? मुझे कैंसर प्रेडिक्ट करना है। इस अब यहां लेके चलते हैं हम लोग इस वाले केस में। ओके, मेरे पास टोटल 100 पेशेंट्स हैं और सिर्फ 5 लोगों को कैंसर जनरली होता है, ठीक है? तो जनरली मेरा 5% का रेशो है मेरा। अब इस केस में अगर मैं लेके चलूं, ठीक है, इस वाले सिनेरियो में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है कि जिस बंदे को कैंसर उसको कैंसर नहीं बताया या जिसको कैंसर उसको कैंसर बता दिया। विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी? सर फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं बता सकते, मतलब किसी को नहीं और उसको बोल दिया कि आपको है, तो इससे तो बुरा कुछ नहीं हो सकता किसी के साथ। उल्टा था और नहीं बताया तो प्रॉब्लम है। और अगर मेरे को तो लग रहा है दोनों ही प्रॉब्लम है। कौन सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है जिसको आप हैंडल कर सकती हो? सर जिसको है और नहीं बताया ज्यादा नहीं प्रॉब्लम है बताया। ना। जिसको नहीं है अगर उसको बता दिया तो वो अगले डायग्नोसिस में नेगेटिव आ जाएगा। यस एग्जैक्टली। So, हाँ, ये बात भी है। if somebody has it and we say no,
then the medication will not start for him and he will reach to the last stage and that will be more dangerous. Yes, exactly. क्योंकि आपने जिसको था उसको बता दिया, आपने लेट से मेडिसिन देने स्टार्ट की, तो नेक्स्ट स्टेज में हो सकता है कोई साइड इफेक्ट होंगे लेकिन उसकी जान पे नहीं बनेगी, ठीक है ना। लेकिन जिसको था आपको उसको नहीं बताया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा, सो वो तो गया। फॉल्स पॉजिटिव फिर इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो उस केस के हिसाब से यहाँ पे मेरे लिए प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है कि रिकॉल इंपॉर्टेंट है? मुझे प्रिसीजन का फॉल्स पॉजिटिव, अगर फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और प्रिसीजन कम हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा मत बताओ, मुझे बताओ। और रिकॉल बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट है नेहा, फॉल्स नेगेटिव इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ वी आर saying false negative हो गया तो we should minimize it because false negative should be minimized. और ये नॉन कैंसर, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे पास टोटल 100 है, लेट से मैंने यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव में लेट से मैंने इसमें लिख दिया इसमें 90 केस फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू नेगेटिव, लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने इसमें 5 केस, यहाँ पर आ गए 3 केस, यहाँ पे आ गए 2 केस, ठीक है। अब ठीक है, ओके। अब इस केस के हिसाब से ये क्या कर रहा है, टोटल 100 केस थे, ओके, ट्रू पॉजिटिव बता रहा है, यानी जिसको कैंसर था उसको कैंसर बता रहा है, इतना बड़ा तो नहीं हुआ, खैर ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर 90 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, ओके। अब ठीक है, अब इस केस में मेरे फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है कि फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला केस तो ये फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है सर। फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है। फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपने बोला कि उसको पता चल जाए है पर नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि नहीं है पर उसका पॉजिटिव आ गया, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिड्यूस द फॉल्स नेगेटिव बेसिकली, बट वी हैव टू इंक्रीज द फॉल्स पॉजिटिव। ऐसा मत करो, देखो फॉल्स नेगेटिव यहाँ किसका नाम फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव कौन देखना चाहता है? मैं देखना चाहती हूँ। आपने तो अभी कहा कि अगर किसी को नहीं है और बोल भी दिया है तो नेक्स्ट केस में पता चल जाएगा। फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है? फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसको नहीं है बट बता रहे हैं है। ये भी आपने कहा ना कि नहीं सही बोल रहे हो। पहले हमें कॉलम रीड करना है और फिर रो, तो 0 1 मतलब नेगेटिव और एक्चुअली नेगेटिव है बट प्रेडिक्ट पॉजिटिव हुआ। तो आप ही ने तो कहा कि कोई नहीं, अगर हो भी जाएगा तो नेक्स्ट डायग्नोसिस में हम चेक कर लेंगे। Yeah, right, that's right. But yeah, so in that case we can accept that false negative is positive, is high, but we need to ensure that the false negative should be low. एक बार इसको पहले क्लियर करते हैं कि what is the meaning of false negative here? False negative means actually he is recall ज़्यादा positive, but चाहिए। तो सबने सोच लिया होगी? Yes. रिकॉल ज्यादा चाहिए सर। हाँ, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? रिकॉल के पक्ष में रिकॉल कौन कहता है कि हायर होना चाहिए? नदीम, पीयूष और कौन है? पुनीत, नेहा और कौन बचा? दीपा, कुलदीप, दीपा। नेहा, आप फॉल्स पॉजिटिव कम करना बता रहे हो तो उस हिसाब से आपका प्रेसिडेंट हाई होता है। सबसे रिकॉल पे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम रिकॉल पे जा रहे हैं। हमारा रिकॉल क्या है? दिस इज माय रिकॉल, राइट? ये मेरा रिकॉल है ना। माय रिकॉल इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय TP प्लस FN। आप 5/7 परफेक्ट। मेरा फॉल्स नेगेटिव मुझे क्या बताता है कि मेरे बेसिकली मेरा उसमें कैंसर था, उसने कैंसर नहीं बताया, राइट? तो मुझे FN मुझे क्या करना है? रिड्यूस करना है। FN में रिड्यूस करूंगा तो ऑलरेडी मेरा क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, रिकॉल बढ़ जाएगा। सो वेरी गुड, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, परफेक्ट है। सो अब आपने देखा कि मुझे किस केस में मुझे प्रिसीजन देखना है और किस केस में रिकॉल देखना है। आपने लास्ट केस में देखा, मैंने क्या देखा? प्रिसीजन देखा, राइट? इस केस में हमने रिकॉल देखा। सो बिजनेस यूज केस टू बिजनेस यूज केस डिपेंड करता है बेसिकली कि आपको कौन सा मीट्रिक चेक करना है, कौन सा मीट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आपका अगर आप देखोगे प्रिसीजन और रिकॉल जनरली मोर लेस एक तरीके से इस तरह से काम करते हैं। प्रिसीजन बढ़ेगा तो आपका रिकॉल कम हो जाता है, रिकॉल मोर लेस आपका इनवर्सली काम करता है, हम आगे देखेंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन विच मैट्रिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ऐसा हो सकता है प्रिसीजन बढ़ाने जाओगे तो रिकॉल आपका कम हो जाएगा।
लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका पूरा फोकस प्रिसीजन पे है। आप चाहते हो आपका प्रिसीजन का स्कोर बढ़े, इररिस्पेक्टिव की रिकॉल अगर मेरा गड़बड़ हो भी जाता है तो आई एम ओके विद दैट, ठीक है ना। अगर वो नॉन कैंसरस, अगर कैंसरस को नॉन कैंसरस नहीं बता भी देता है, सॉरी नॉन कैंसरस कैंसर, तो मैं आई कैन हैंडल इट, ठीक है ना। लेकिन मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो कैंसर है उसको नॉन कैंसरस ना बताए, सो बिकॉज दैट इज अ डिजास्टर सिचुएशन फॉर मी। सो सर यू आजकल के टाइम में तो कैंसर को आप कोरोना से सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, कोरोना से मान लेते हैं, ओके। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। अगर मेरी चाइना से किट आई है तो आई एम, मेरा जो है प्रिसीजन रिकॉल में आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो ये इश्यूज हैं आपके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल मीट्रिक फॉर यू दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस यूज केस। अगर आपने गलत मीट्रिक चूज कर लिया तो आपने मॉडल भले ही सही बनाया हो लेकिन आप उसको सही गलत एक्सिस को ट्रेन कर दोगे, ओके। सो यू हैव टू ट्रेन योर मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ योर मेट्रिक, या आप उसको कैसे ट्रेन करना चाहते हो। अगर आपको प्रिसिजन इंक्रीज करना है तो आप मॉडल को ट्रेन करोगे इस तरीके से कि आपका प्रिसिजन का स्कोर हाई हो जाए, फिर आप उस हिसाब से अपनी थ्रेशोल्ड चेंज करोगे, उसको ऊपर नीचे करोगे, व्हाटएवर जो भी करोगे हम आगे देखेंगे। अगर आपको रिकॉल अपना बढ़ाना है तो देन यू विल गो फॉर द कि रिकॉल को मुझे कैसे उसको एडजस्ट करना है, आई वांट टू गो रिकॉल फॉर द हायर साइड, ओके। सो दिस इज बिजनेस यूज केस टू बिजनेस यूज केस। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप हमेशा प्रेसिडेंट देखोगे रिकॉल देखोगे, नो। बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। तो जनरली आप जो इंडस्ट्री, अगर आपको नॉर्मल एक्यूरेसी देखनी है मॉडल की तो यू कैन गो फॉर द एक्यूरेसी। लेकिन एक्यूरेसी आपको एक्चुअली, अगर मैं इस वाले केस की मैं बात करूं, इस वाले केस में मेरी एक्यूरेसी कितनी है, ऑलमोस्ट 95% है, ओके। लेकिन मेरा मॉडल 95% एक्यूरेसी पे काम कर रहा है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट ए गुड मॉडल फॉर मी, क्योंकि दो केसेस को अभी भी क्या कर रहा है ये, जो एक्चुअल में कैंसर थे उनको नॉन कैंसर बता रहा है। तो ये मॉडल मेरा 95% एक्यूरेसी पे काम कर रहा है, लेकिन स्टिल आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि मुझे ये दो केस में जीरो चाहिए। अदरवाइज अगर जीरो नहीं होते हैं तो ये मॉडल मेरे लिए डिजास्टर्स है, ओके। सो आई कैन नॉट ब्लाइंडली, मैं केवल एक्यूरेसी पे नहीं आ सकता हूँ। एक्यूरेसी इज नॉट अ बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर मी इन द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। आई हैव टू वेरी प्रिसाइजली, आई हैव टू चूज कि मुझे कौन सा मैट्रिक्स यूज करना है, क्योंकि स्कोर आपका हमेशा हायर साइड पे हो सकता है, हमेशा दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू फाइंड आउट मुझे प्रेसिजन चाहिए, रिकॉल चाहिए, देन यू हैव टू चूज कि ये मॉडल को कैसे ट्रेन करना है, कैसे उसको ट्यून करना है, ओके गुड। ये सब हमने देख ली कहानी आपकी, ये सब आप देख चुके हो, ये सब आप सब देख लिया, ये सब बेकार है। इस पे चलते हैं। अब एक सिंपल सी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक वैसे तो आप कर ही लोगे इसको, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। ये आपकी क्वेरी है, ठीक है ना। आपको बहुत सारे फ्रूट्स दिए हुए हैं, आपने एक क्वेरी चलाई, यू वांट टू सर्च एप्पल्स, आपने क्वेरी चलाई रेड मीडियम साइज फ्रूट, रेड मीडियम, और आपने जो बीच का सर्कल है जो आपने ये बना हुआ है व्हाइट व्हाइट, आपकी क्वेरी ने आपको रिजल्ट, आपको आउटपुट दे दिया है। आपको एप्पल सर्च करने थे लेकिन आपने जो क्वेरी की उससे आपको ये आउटपुट आ गया। तो इस आउटपुट के हिसाब से, ठीक है ना, और आपको सर्च करने थे एप्पल और आ गए आपके ये वाले, तो इस हिसाब से आपका प्रेसिजन कितना और रिकॉल कितना है, बताओ जल्दी। व्हाट इज योर प्रेसिजन एंड व्हाट इज योर रिकॉल? You guys have 3 minutes. Enjoy. Recall is 50%. नहीं बिल्कुल मैं एप्पल चाहिए था और 3 आने चाहिए थे, 6 आ गए। कोई बात नहीं, नहीं, एक एप्पल, एक 2 एप्पल बाहर भी आए, तो वो फॉल्स हो गए, उनको पकड़ना चाहिए था लेकिन नहीं पकड़ा। हाँ, तो नहीं कोई बात नहीं, आप सब लोग 3 आउट ऑफ 6। नहीं, आप लोग सब लोगों के पास 2-2 मिनट है, आप अपने प्रिसीजन का स्कोर और रिकॉल का स्कोर आप नोट डाउन कर लें। 2 मिनट बाद आप सब लोगों से मैं फिर से रूबरू होऊंगा, ठीक है ना। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। Sir, recall 3/5, precision 3/6.
नहीं बाकी, अच्छा बाकी का तो गिनना ही नहीं है। हाँ 3 सही पकड़े उसने, 3 गलत पकड़े। 3/5 and 3/6. ठीक है। हो गया आई थिंक। हाँ जी। गुड, परफेक्ट, सबका आ गया। तो दिस इज योर होम एक्सरसाइज। आगे चलते हैं। अब मैं एक और केस देता हूं आपको। लेट्स से हमारा एयरपोर्ट पे एक स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है। वो स्कैनर से फिर डिटेक्ट करता है कि आपके बॉक्स में या आपके लगेज में कोई अनऑथोराइज आइटम तो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट है। उस केस में आपके लिए कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनडिटेक्टेड आइटम थ्रू हो जाए या लीगल आइटम को आप डिटेक्ट कर लो, आपका अलार्म रिंग कर दो? विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू? सर लीगल को अगर फॉल्स आपने नेगेटिव ज्यादा आ जाएगा तो सही। इलीगल को लीगल डिक्लेयर कर दो तो ज्यादा प्रॉब्लम है। कैंसर वाला सीन हो गया सर, ये कैंसर वाला केस की अगर नहीं भी है तो भी कर दे डिटेक्ट। यस, गुड। नहीं भी हाँ है, फॉल नहीं नहीं अगर अगर बॉम्ब नहीं है उसको कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर है और नहीं किया तो टेंशन है। यस, आपको उसमें बॉम्ब था और आपने डिटेक्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम है। अगर बॉक्स में बॉम्ब नहीं था लेकिन आपने अलार्म बजा दिया, उसको आप लगेज खोल के देख लो, पता चल जाएगा कुछ नहीं है। सो राइट, तो फॉल्स आपके लिए प्रॉब्लम नेगेटिव ये है बेसिकली ज्यादा कि होना आप, चाहिए। यस, तो उस केस में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए? फॉल्स नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए। रिकॉल रिकॉल रिकॉल। ओके, सो गुड। सो आपको चीजें मोर और लेस थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, दैट इज गुड। सो एक्यूरेसी आप कहाँ, प्रिसिजन आप कहाँ यूज करोगे, एक्यूरेसी कहाँ यूज करोगे, दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस यूज केस। एक्यूरेसी आप कहाँ यूज करोगे? जहां पे आपका मोर लेस डाटा आपका बैलेंस्ड है, यानी कि आपके ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव ऑलमोस्ट आपके बराबर बराबर हैं, तो उस केस में आपको एक्यूरेसी फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगी। लेकिन आपका अगर डाटाबेस बहुत ही अनबैलेंस है, लेकिन जैसे 100 में से सिर्फ लेट से 95% लोग जो होते हैं नॉन कोरोना वाले हैं, 5% सिर्फ कोरोना वाले हैं, तो उस केस में आपका डाटा अनबैलेंस है, तो आपकी एक्यूरेसी एक्चुअली आपको सही पिक्चर नहीं देगी। हमने देखा भी था, क्योंकि आपका हमेशा आपका स्कोर जो होगा हमेशा हायर साइड पर रहेगा इस केस में आपका। तो एक्यूरेसी इज नॉट ए गुड मेट्रिक व्हेन योर डेटा इज अनबैलेंस्ड। अगर आपका डेटा बैलेंस है मोर लेस, यानी कि आपकी ए क्लास भी आपकी ऑलमोस्ट 50% और बी क्लास भी आपकी ऑलमोस्ट 50% आपके ट्रेनिंग डाटा में या आपके टेस्टिंग डाटा में, सो उस केस में बेसिकली आपका क्या होगा, एक्यूरेसी फिर भी आपको मोर लेस एक ठीक ठाक पिक्चर दे देगी, ठीक है। बट व्हेन योर डेटा इज नॉट बैलेंस्ड, यू हैव द अनबैलेंस्ड डेटा, then accuracy is not the right metric for you. Then you have to go for the either the precision or the recall, जो हमने बाकी सारे केसेस में देखा भी है। सो मेजॉरिटी आपकी हमेशा जाहिर सी बात है, इन द रियल सिनेरियो जनरली आपका डाटा इनबैलेंस्ड ही होता है, ओके। तो एक्यूरेसी आपको जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको राइट पिक्चर कभी आपको नहीं मिलेगी। हमेशा आपका मॉडल का स्कोर आपका हमेशा हायर साइड पर रहेगा, लेकिन आपका मॉडल जैसा एक्सपेक्टेड है यूज केस हिसाब से ऐसा आपका काम नहीं कर रहा होगा, ओके। सो व्हेन टू यूज प्रिसिजन एंड व्हेन टू यूज रिकॉल, परफेक्ट, आपको समझ में आ गया, ओके, कि कहाँ मुझे फॉल्स नेगेटिव मिनिमाइज करना है और कहाँ मुझे फॉल्स पॉजिटिव मिनिमाइज करना है, तो आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो दिस इज जस्ट थियोरेटिकल कांसेप्ट, प्रैक्टिकली यू हैव लर्नड इट, ओके। तो अभी हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने आपकी एक्यूरेसी देखी, प्रिसिजन देखा, रिकॉल देखा, और हमने क्या देखा, आपका F1 स्कोर देखा। नाउ वी विल गो फॉर द टू मोर टर्म्स व्हिच आर TPR एंड FPR, ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो ट्रू पॉजिटिव रेट तो आपका एग्जैक्टली वही है जिसको हम रिकॉल बोलते हैं, ओके। मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 0 1 0, okay. Let's say this is 400, okay, and let's say this is 400,
50, this is 20, and this is 30 for example. So this is your recall. Recall your true positive plus true positive false negative. तो मैं कहाँ लगाऊं? कौन सा होता है true आपका? This is your recall, right? This is your recall. And what's your false positive rate? यानी कि false alarm rate. ये आपका हो जाता है 1 minus specificity. Specificity मतलब precision. तो ये आपका हो जाता है 1 minus precision क्या था आपका? True positive divided by true positive plus क्या होता नीचे? ये क्या आपका? false positive. false positive. तो ये क्या चला जाएगा मेरा? ऊपर चला जाएगा. तो ये क्या हो जाएगी मेरी इक्वेशन? false positive divided by TP plus FT, यही हुआ ना? yes sir यही हुआ ना? तो false positive rate आपका आ गया false positive plus true negative क्यों आ रहा है इसमें? मैंने कुछ गलत किया है क्या इक्वेशन के हिसाब से? स्पेसिफिसिटी क्या होता है आपका? नहीं, स्पेसिफिसिटी फिर आपका स्पेसिफिसिटी इज योर प्रिसीजन, राइट? फॉल्स नेगेटिव होता है नीचे डिनोमिनेटर में. What is this? This is false positive, false negative. This is false positive, right? This is false negative. Okay. Very good. तो false positive rate आपका क्या है? 1 minus specificity. तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन फाउंड वन का ये आ रहा है. तो इसके हिसाब से क्या है? false positive rate is FP divided by FP plus TN. ये कहाँ पे लगाऊंगा? कहाँ पे आएगा ये? Where it is? False positive divided by, this is your false positive divided by false true negative, यानी this thing. यानी कि आपका कितना हो जाएगा इस ग्राफ के हिसाब से? 20 डिवाइड बाय 20 प्लस 450. So this is your false rate, false positive rate. वो आपका true positive rate था, that is your recall, और ये आपका false positive rate है. यानी कि ये और ये है. This is your recall and this is your FPR. Okay. तो FPR मुझे क्या बता रहा है? False positive rate normal term में. नेहा क्या बता रहा है false positive rate? कि टोटल पॉजिटिव जितने भी, मतलब बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव, ये टोटल रेट बता रहा है. मतलब टोटल कितने प्रिडिक्ट हुए हैं, एक्चुअल प्लस प्रिडिक्टेड कितने फॉल्स हैं. मतलब एक तो ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, मतलब मैं वो कैसे समझाऊं, इसको फ्रेम करती हूँ. यानी कि एक्चुअल प्लस प्रिडिक्टेड कितने नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, ओवर प्रिडिक्ट, मतलब कितने नेगेटिव प्रिडिक्टेड और टोटल कितने नेगेटिव्स हैं, फॉल्स हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो भी है वो मुझे बस देख के समझ आ रहा है. मतलब रेट क्या होता है, मतलब कि कितने फॉल्स पॉजिटिव हैं, तो वो तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में. और अपॉन टोटल जो भी होगा, टोटल किस चीज का होगा कि एक्चुअली कितने नेगेटिव है और कितने फॉल्स प्रिडिक्ट हुए हैं. फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि जितने एक्चुअल में नेगेटिव होने चाहिए थे, और टोटल कितने हुए. तो बेसिकली जितने भी नेगेटिव सिनेरियोज है टोटल, चाहे वो गलत पकड़े गए चाहे वो सही पकड़े गए, वो डिनोमिनेटर है, और ऊपर जितने भी गलत पकड़े गए वो आपका न्यूमरेटर है. यस एग्जैक्टली. आपके जो एक्चुअल में आपके नेगेटिव केसेस थे, आपके मॉडल उसमें से आउट ऑफ नेगेटिव कितने को एक्चुअली सही प्रेडिक्ट कर रहा है, मतलब उनको पॉजिटिव बता रहा है. उसका बेसिकली जो हमारा पॉजिटिव वाला केस था, रिकॉल का जस्ट अपोजिट, राइट? रिकॉल का अपोजिट हो गया ना ये तो. यस एग्जैक्टली, ये रिकॉल का जस्ट अपोजिट है आपका.
ठीक है। तो बेसिकली बता रहा है कि आपका जो टोटल नेगेटिव केस थे आपके से, उसमें से आपको कितने तरीके से उस आउट ऑफ दैट ट्रू नेगेटिव में जो आपके टोटल नेगेटिव केस थे, आपके टोटल नेगेटिव केसेस हैं, उसमें से कितने को गलत तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है। आउट ऑफ 470 20 को गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट। उसको नेगेटिव थे लेकिन पॉजिटिव बता रहा है। तो आपको बता रहा है कि टोटल आउट ऑफ टोटल नेगेटिव केसेस में से कितनों को गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। तो दिस इज दैट थिंग। तो आपका ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट, ओके। अब पहुंचते हैं यहाँ पे स्पेसिफिसिटी। इसका जस्ट रिवर्स होती है आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट का। फॉल्स पॉजिटिव रेट वाज फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Fe प्लस Tn। ये आपका जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। इस यानी कि 1 माइनस फॉल्स पॉजिटिव रेट करोगे तो आपको स्पेसिफिसिटी मिल जाएगी। इसका जस्ट रिवर्स यानी कि बेसिकली आपका हो जाएगा ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय Fe प्लस Tn। ये यानी कि बेसिकली आउट ऑफ टोटल नेगेटिव टेस्ट के सिर्फ तो कितनों को सही से नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा है एक्चुअली में। ये आपका ये हो गया आपका स्पेसिफिसिटी। तो आपका स्पेसिफिसिटी और ट्रू पॉजिटिव रेट आपके जस्ट रिवर्स हुए हैं कि नहीं है, ये बताओ मुझे। ये कौन कौन से जस्ट रिवर्स हैं? ये ट्रू पॉजिटिव आपको ये बताता है कि आपके एक्चुअल पॉजिटिव से कितने पॉजिटिव बता पा रहा है, और आपका स्पेसिफिक बता रहा है कि टोटल नेगेटिव से कितने को नेगेटिव बता पा रहा है, राइट। क्या हुआ? यस सर। यस सर, सो वी आर गुड। सो स्पेसिफिसिटी आप कहाँ यूज करोगे? अब कैंसर वाला केस ले तो आपको स्पेसिफिसिटी हाई चाहिए कि कम चाहिए? पर सर थोड़ी देर पहले तुमने कहा था स्पेसिफिसिटी इज प्रिसिशन। नहीं, वो मैंने गलत बोला होगा। 1 माइनस वो मतलब फॉर्मूला अलग है, वहां पर लिखने की प्रॉब्लम है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है, ओके। सो दिस इज स्पेसिफिसिटी। अगर हम कैंसर वाला केस लें, कोरोना वाला केस ले लेते हैं, तो कोरोना वाला केस के हिसाब से कोरोना और नॉन कोरोना, तो इस केस में आपको स्पेसिफिसिटी आपको हायर चाहिए कि कम चाहिए? हाई। स्पेसिफिसिटी कम चाहिए ना इसमें। स्पेसिफिसिटी हाई कम होनी होनी चाहिए चाहिए क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव भी चलेगा। क्योंकि आपको फॉल्स पॉजिटिव आपको, अगर ये फॉल्स पॉजिटिव आपका इंक्रीज होता है आपको चलेगा कि नहीं चलेगा? फॉल्स पॉजिटिव कम होने चाहिए। फॉल्स पॉजिटिव आपके कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चलेगा नहीं, हाँ मतलब नहीं कोरोना है था बट उसको, प्रिडिक्ट हो जाए। मतलब फॉल्स पॉजिटिव आपकी वो है कि कोरोना था उसने नहीं बताया, राइट? ये हुआ ना? या कोरोना नहीं था उसने बता दिया, क्या केस है? एक्चुअली से कोरोना नहीं था फ्री बता दिया। तो फॉल्स पॉजिटिव अगर आपको इंक्रीज में होगा तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता आपके लिए, राइट? इनफैक्ट नहीं था सही है, बता दिया, राइट। हाँ ना। आप फॉल्स पॉजिटिव के ऊपर देखें अगर तो एक्चुअली नेगेटिव है बट प्रिडिक्ट पॉजिटिव हो गया तो चलेगा, इंस्टेड कि हम उसको रहने दें अनडिटेक्टेड। इससे अच्छा तो ना भी वो डिटेक्ट हो जाए, सेकंड बारी में आ जाएगा। अब मैं इसको केस को रिवर्स कर देता हूँ, और लेट से मैं यहाँ पर इस पॉजिटिव केस में मान के चलता हूँ, उसको नॉन कोरोना केस में पॉजिटिव मान के चलता हूँ, और कोरोना केस मेरा नेगेटिव है। ये तो नहीं अब अब उसको कोरोना है सर, ऐसे तो नहीं हो सकता सर, ऐसे तो अरे मैं किसी को कंफ्यूजन हो गया मतलब। मैं किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव मान सकता हूँ ना। पर्पस वही आज की क्लास का। तो इस केस में मेरी स्पेसिफिसिटी मुझे क्या हायर चाहिए कि लोअर चाहिए? इस केस में उल्टा हो जाएगा। इस केस में उसको कोरोना है लेकिन प्रिडिक्ट नहीं हुआ, तो ये तो खतरे की बात है। तो फॉल्स पॉजिटिव कम होने इसका मतलब वो बेसिकली कोरोना वाला केस था, ठीक है ना, और आपने उसको नॉन कोरोना कर दिया, राइट? यानी कि Fe अगर आपके हायर साइड पे अगर आपके जा रहे हैं तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? यही हुआ ना? आपको कोरोना था लेकिन आपने उसको नॉन कोरोना प्रेडिक्ट कर दिया, तो Fe अगर आप जितने हायर साइड हो जाएंगे हमें प्रॉब्लम, और Fe आपका कहाँ पे आता है? नीचे। तो आपको कम चाहिए, इसका मतलब आपको स्पेसिफिसिटी कितनी चाहिए? आपको हाई चाहिए, यू नीड हायर स्पेसिफिसिटी। यानी कि इस केस में आपको स्पेसिफिसिटी आपको हायर चाहिए। और अब बात करते हैं प्रिसीजन और रिकॉल की। इसी सेम केस में आपको प्रिसीजन और रिकॉल कैसे काम करेगा इसी वाले केस में।
इस केस में फॉल्स पॉजिटिव, इस केस में प्रिसिजन भी ज्यादा होगा इस केस में, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव कम करना है. प्रिसिजन इज ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव ना. ये मेरा प्रिसीजन है, राइट? हाँ, ये प्रिसिजन है, तो फॉल्स पॉजिटिव डिनोमिनेटर में आता है, तो हमें फॉल्स पॉजिटिव को कम करना है, यानी अगर ये उल्टा वाला, यानी मेरे को प्रिसीजन भी हाई चाहिए, राइट? हम्म, गुड. अब इस केस में अब कैंसर वाला दूसरा वाला एग्जांपल लेके चलते हैं. 100 पीपल हैं, 5 लोगों को कैंसर होता है, ठीक है? इन अवर डिनोमिनेटर फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव 95. इस केस में लेट्स से 95 और 5 का रेशो है फॉर एग्जांपल. ओह, इस केस में लेट्स से 100 लोगों को होता है कैंसर. ओके, इस वाले केस में लेट्स से ये वाले केस जो होते हैं आपके कोरोना वाला केस, लेट्स से आपके नॉन कोरोना वाले केस आपके 95 होते हैं मोर और लेस, ठीक है? ये आपका 3 केस रहते हैं, ये 2 हो गया, और लेट्स से मैंने इसको कर दिया, इसको भी 1 कर देता हूँ मैं, और इसको भी 1 कर देता हूँ मैं, राइट? इस केस में मेरी स्पेसिफिसिटी कितनी है? थ्री बाई फोर. कितनी होगी मेरी? 3/4. 3/4. अब मुझे स्पेसिफिसिटी इस केस में क्या चाहिए? हायर चाहिए मुझे, राइट? हायर का मतलब क्या है कि मुझे क्या कौन से केस में कम करने पड़ेंगे? एफपी वाले में 0 करने हैं, राइट? ये मैं अगर 0 कर दूंगा तो मेरा ये स्पेसिफिसिटी कितनी आएगी मेरी? 1 आ जाएगी, राइट? अगर लेकिन उसी केस में लेकिन मैं ट्रू नेगेटिव जो थे, मतलब किसी को भी वो नॉन कैंसर नहीं कर रहा है, लेट्स से ये केस उसने 0 कर दिए, तो ये केस मेरे कहाँ पहुंच जाएंगे? ये लेट्स से मेरे सारे केस कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ से नहीं हो तो जंप करके कहाँ जाएंगे? यहीं पे जाएंगे, राइट? तो ये कितने हो जाएंगे मेरे? 4. ये मेरे कितने हो जाएंगे मेरे? 0. इस केस में मेरी स्पेसिफिसिटी कितनी हो गई? 0, राइट? ये स्पेसिफिसिटी मतलब वो वाला केस जब बेसिकली वो किसी भी जब मेरा ट्रू नेगेटिव बिल्कुल मतलब जिसको कैंसर कोरोना था, कोरोना बिल्कुल भी नहीं बता रहा, तो उस केस में मेरी स्पेसिफिसिटी 0 हो जाएगी. तो मुझे इस वाले केस में मुझे अपनी स्पेसिफिसिटी हमेशा मुझे हायर साइड में चाहिए. सो आपके लिए 3 मेजर फैक्टर हो गए. यू हैव टू लुक फॉर पी, आर एंड एस. जनरली आप देख सकते हो, लेकिन जनरली जो मेजर फैक्टर होते हैं आप पी और आर कंसिडर करते हो, आप एस को भी चेक कर सकते हो. सो आपका आप बिजनेस यूज केस के हिसाब से आप देखोगे कि आपने किसको पॉजिटिव केस माना है, किसको नेगेटिव केस माना है, और आपके बिजनेस यूज केस के हिसाब से आपके लिए क्या कौन सा आपके लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है. देन यू विल डिसाइड कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, पी और आर. ओके, और पी और आपको एडजस्ट कैसे करते हो? तो आपकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी, उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वो ये कह रहा है. सेंसिटिविटी आपकी यानी कि प्रिसीजन, राइट? यानी कि ये और ये इन दोनों में आपका रिवर्स रिलेशनशिप है, वही कहना चाह रहा है आपके प्रिसीजन में और स्पेसिफिसिटी में. ऐसा ही है क्या? But sensitivity was recall. Sensitivity was recall. हाँ. Oh, उधर वाला जो सबसे पहला पेज था. Yes, sensitivity recall. You are right. तो आपका बेसिकली सर आई थिंक सो शायद ऐसा कुछ है कि अगर स्पेसिफिसिटी बढ़ती है तो प्रिसिशन भी बढ़ता है, मतलब देखो हमारा वैसे आपस में दोनों कोरिलेटेड है. हमारा रिकॉल का फॉर्मूला क्या है? हमारा रिकॉल का फॉर्मूला क्या है? हमारा है ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस व्हाट इज दैट? फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स नेगेटिव. और आपका स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या है? ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. ये दोनों रिवर्स इनवर्स है कि नहीं है इस फॉर्मूले के हिसाब से? क्योंकि दोनों चीजों में देखो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव है, ठीक है ना? तो अगर आपका फॉल्स नेगेटिव आपका इंक्रीज होता है
लेट्स से तो फॉल्स पॉजिटिव पे क्या फर्क पड़ेगा? फॉल्स पॉजिटिव चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज़ वी हैव अ गुड चार्ट हियर. दिस इज ट्रू पॉजिटिव, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, दिस इज false negative, this is true negative. Okay, यही है ना? This is 1 0 1 and 0. Okay, इस केस के हिसाब से ये दोनों कह रहे हैं कि दोनों इनवर्स हैं, राइट? कैसे इनवर्स हैं? यानी पहले के हिसाब से अगर हम केस करते हैं, सिंपली लेट से यहाँ पे मेरे 1 के हिसाब से आपका 1 वाला केस आपका कैंसर वाला केस है, तो यहाँ पे आपके लेट से यहाँ पे मैं कहता हूँ 4, यहाँ पे आपका आ जाते हैं लेट से 95, यहाँ पे आपके आ जाते हैं 3, नहीं ज्यादा हो गए, ये आपका 1 कर दिया मैंने, या मैंने आपका लेट से 0 कर दिया आपका इस केस में. ठीक है ना, वी आर गुड. इस केस के हिसाब से अगर हम देखें तो इस केस के हिसाब से मेरी रिकॉल कितना है मेरा? व्हाट इज माय रिकॉल? रिकॉल 4/4 1. दिस इज माय रिकॉल. रिकॉल मेरा ये होता है ना, राइट? रिकॉल कितना हो गया मेरा? 4/4 + 0. 4/4 + 0 is 1. ओके, सॉरी. रिकॉल मेरा आगे में 100% रिकॉल आ रहा है मेरा, ठीक है. और मेरा स्पेसिफिसिटी कितनी आ रही है मेरी? स्पेसिफिसिटी 1/95 डिवाइड बाय अच्छा 95 डिवाइड बाय 96. अब लेट्स से मेरा फॉल्स पॉजिटिव वाला केस है, ये मेरा कहां से उठ के आया होगा? ट्रू नेगेटिव से, राइट? से आप ये कह रहे हो कि फॉल्स पॉजिटिव वाला कहां से है? देखो दोनों मेरे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे मेरा ट्रू नेगेटिव है और ट्रू पॉजिटिव है, मैं फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव है. अगर मैं फॉल्स नेगेटिव अगर मैं कम करता हूँ, फॉल्स नेगेटिव कम करने के बाद ये वाला, ये अगर मैं कम करता हूँ फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, तो फॉल्स नेगेटिव अगर मैं कम कर दूं कहां पर ऐड होगा ये? फॉल्स पॉजिटिव है. सीरियसली? अगर मैं फॉल्स नेगेटिव को मैं इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो कौन से बॉक्स पे फर्क पड़ेगा? ये नहीं पता. ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि बेसिकली आपका ये फॉल्स नेगेटिव है. फॉल्स नेगेटिव अगर आपका कम होगा, जैसी बात है ट्रू पॉजिटिव से आ रहा होगा, तो आपका ट्रू पॉजिटिव अगर मैं फॉल्स नेगेटिव को डिक्रीज करूंगा तो बेसिकली ये अगर मैं डिक्रीज करूँ तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा ये, क्योंकि वो पॉजिटिव में चला जाएगा, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव आपको यहीं से आ रहा है ना ये, और आपका ये फॉल्स नेगेटिव, और ये वैसे फॉल्स पॉजिटिव आपका ट्रू नेगेटिव से आ रहा है. अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. ओके, अब ये वाला केस लेके चलते हैं. मेरा फॉल्स नेगेटिव है इस केस में, इस मेरा ये मेरी क्या है, मेरा रिकॉल है. अगर मैं फॉल्स नेगेटिव को मैं इंक्रीज कर देता हूं तो मेरा केस कहां चला जाएगा? ये फॉल्स नेगेटिव मैंने डिक्रीज किया, ठीक है ना, यानी कि मेरा डिक्रीज करते ही मेरा ये ट्रू पॉजिटिव की तरफ चला गया ये, यानी कि इस केस में मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा बेसिकली क्या रिकॉल मेरा बढ़ेगा कम होगा? मेरा रिकॉल इंक्रीज होता चला जाएगा इस केस में, ठीक है ना, क्योंकि एफएन को मैं कम कर रहा हूँ, एफएन का मेरा टीपी में बढ़ता चला जाएगा, नहीं मेरा बेसिकली आपका ये बढ़ता चला जाएगा. ओके, और यहाँ पर क्या है उसका, इस पे क्या इफेक्ट होगा? और यहाँ पे मेरा क्या है? ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. अगर मेरे ट्रू पॉजिटिव मेरे ट्रू पॉजिटिव मेरा बिल्कुल ठीक है, फॉल्स नेगेटिव बिल्कुल ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव आ गया, ट्रू नेगेटिव आ गया, और मेरा फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव ये मेरा कम होता चला जाएगा, मेरा ये वाला इसको मेरा बढ़ता चला जाएगा. ओके, तो ये वाकई में इनवर्स है कि नहीं है मुझे बताओ? इनका आपस में कोई रिलेशन है? इसमें लिखा है कि अगर मैं एक को इंक्रीज करूंगा दूसरा डिक्रीज हो जाएगा. क्या वाकई में ऐसा है फॉर्मूले के हिसाब से? यस. कैसे समझाइए आप हमें? Obviously accuracy will go up, correct? नहीं, एक्यूरेसी छोड़ दो, हम सिर्फ स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं. आपकी सेंसिटिविटी कहाँ गई? वेयर इज द सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी इज रिकॉल, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, राइट?
और आपकी स्पेसिफिसिटी क्या है? आपकी स्पेसिफिसिटी ये है, दिस ट्रू नेगेटिव। So specificity is the reverse of recall. नहीं, हाँ ये कह रहे हैं कि आपकी स्पेसिफिसिटी आपके रिकॉल के इनवर्स है। दोनों अगर आप इनवर्स है, तो अगर एक कम होगा दूसरा अपना बढ़ेगा ना। कैसे बताइए आप मुझे? That is why they are inversely proportional to each other ना। वो तो कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वाकई में ऐसा कैसे काम कर रहा है। मुझे एग्जांपल लेके बताओ ना, अगर एक बढ़ेगा दूसरा कैसे कम हो रहा है, मुझे बताओ आप। अगर उसमें क्या है, टोटल नेगेटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव। तो अगर फॉल्स पॉजिटिव जो हैं इफ दे रिड्यूस, तो the TN, the overall ratio will increase because denominator is going down. तो जैसे ही फॉल्स पॉजिटिव बढ़ेगा, सॉरी कम होगा, तो आपका रिकॉल वैल्यू बढ़ जाएगा ना। कैसे? अगर हम पहले वाला केस लेते हैं, फॉल्स नेगेटिव वाला केस। अगर मैं फॉल्स नेगेटिव अगर मैं एडजस्ट करता हूँ, यानी कि फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव को छोड़ दो, ठीक है ना, वो तो एकदम परफेक्ट केस है। मैं फॉल्स नेगेटिव को एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं फॉल्स नेगेटिव को एडजस्ट करता हूँ, फॉल्स नेगेटिव को आप कम करेंगे, तो किस बॉक्स से फर्क पड़ेगा मेरा? फॉल्स नेगेटिव को कम करेंगे तो इट विल गो इनटू ट्रू नेगेटिव, करेक्ट? ट्रू नेगेटिव में, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव है मेरा ये। फॉल्स नेगेटिव तो सॉरी ट्रू पॉजिटिव में चला जाएगा, क्योंकि मेरा फॉल्स नेगेटिव है ये, ठीक है ना। तो कहाँ पे जाएगा? जिसका ऑलरेडी मेरा ट्रू पॉजिटिव में चला जाएगा ये, ठीक है ना। और ऐसी राइट, एग्जैक्टली ऐसे में अगर सेकंड बॉक्स से पहुंचता हूं, अगर मैं फॉल्स पॉजिटिव को एडजस्ट करता हूं, कहां पे एडजस्ट होगा वो? फॉल्स पॉजिटिव मतलब तो ये जाएगा नेगेटिव में, टीएन में। ट्रू नेगेटिव में एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों को फॉल्स नेगेटिव को फॉल्स को एडजस्ट करता हूं, तो बेसिकली अगर मैं इस फॉल्स पॉजिटिव पे अगर मैं काम कर रहा हूं, इस वाले पे अगर मैं लेट्स से इसको एडजस्ट करता हूं, तो उसका क्या रिकॉल पे कोई फर्क आएगा? रिकॉल पे नहीं, रिकॉल में तो ये फार्मूला में यूज ही नहीं होता ना। रिकॉल में फार्मूला यूज ही नहीं हो रहा। और ये एफ को अगर मैं ऊपर नीचे करूंगा तो सिर्फ आपका ट्रू नेगेटिव में फर्क आएगा। अगर इसको मैं कम ज्यादा होता भी है तो बॉक्स में कहाँ इंक्रीज या डिक्रीज होगा? सिर्फ ट्रू नेगेटिव में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और तो वही हो ही नहीं सकता है, राइट? फॉल्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव था नहीं, लेकिन इसने पॉजिटिव बताया, तो एक्चुअली ये नेगेटिव था, और टीएन में जाएगा। तो बेसिकली आपकी कौन कौन सी चीजें रिवर्स होनी चाहिए? क्या आपकी स्पेसिफिसिटी, और ये था आपका रिकॉल का फार्मूला। अब मैं आपका प्रिसीजन का फार्मूला लिख देता हूं। व्हाट इज योर प्रिसीजन का फार्मूला? हाँ, प्रिसीजन इज वर्टिकल ना, प्रिसीजन योर उसमें फॉल्स नेगेटिव है, डिवाइड बाय TP प्लस FN, TP प्लस FP, FP। परफेक्ट। इस केस में अब मैं इसको और स्पेसिफिसिटी को कंपेयर करता हूं, यानी कि ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्या इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है? FP दोनों में डिनोमिनेटर में आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो अगर FP आप कम करेंगे, दोनों बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन कम करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? टीएन में जाएगा। तो टीएन ऑलरेडी बढ़ जाएगा अपना। तो एफपी अगर आप कम करोगे तो टीएन तो आपको ऑलरेडी बढ़ ही रहा है। तो एफपी अगर आप कम करोगे तो दोनों बढ़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो एफपी जाएगा कहाँ? टीएन में। हाँ ठीक है, एफपी अपने लेट से पहले आपका एफपी लेट से फॉर एग्जांपल आपका लेट से 5 था, आपने उसको कम करके आपने 3 कर दिया। हाँ ठीक है, वो यहाँ आपका 5 प्लस से या टीएन, ये आपका टीएन प्लस 2 हो गया। 2 हो गया, ठीक है। और ये आपका एफपी आपका ये सेम ही रहेगा। सेम क्यों रहेगा? कम हो गया ना, 3 कर देना हमने इसको। सेम रहेगा -3 + 2, वही मतलब ओवरऑल टोटल सेम ही रहेगा। और ये आपका ये आपका सम कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। और ये इस वाले केस की बात करें तो इसमें टीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टीपी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? लेकिन एफपी कम हो रहा है। एफपी आपका कम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो ये भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा। तो कौन सा ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा? न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ रहा है, ये ज्यादा बढ़ेगा, राइट? क्योंकि इसमें तो ये भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये ज्यादा बढ़ेगा। तो यानी इन दोनों में तो एक में न्यूमरेटर बढ़ रहा है, दूसरे में डिनोमिनेटर कम हो रहा है। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? वो पता, किसकी ज्यादा होगी? पता नहीं, ये ज्यादा होगी। ओके, तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, राइट? क्योंकि दोनों ही बढ़ेंगे आपके। तो लेकिन बढ़ेंगे, लेकिन स्पीड किसकी ज्यादा बढ़ेगी? वो
हाँ, लेकिन एग्जैक्टली इसमें इनवर्स रिलेशनशिप तो नहीं है, राइट? नहीं राइट, परफेक्ट। यानी कि आपकी, अब हम जब जाते हैं रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसका मतलब बेसिकली जो ये बात कर रहा है कि सेंसिटिविटी और बेसिकली आपको दूसरी चीज क्या बताई इसने, स्पेसिफिसिटी में आपका इनवर्स रिलेशनशिप। तो बेसिकली आपका इस, यानी कि बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी, एक्चुअली इट इज एग्जैक्टली नॉट द रिकॉल नहीं होती है। ओके, ये क्या होनी चाहिए? प्रिसीजन। नहीं, प्रिसीजन भी नहीं है। वापस चलते हैं। देखो स्पेसिफिसिटी का क्या थी आपके Tn by the Fp, ये आपकी, इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी आपकी होती है, इसके हिसाब से आपकी होनी चाहिए ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस Fn। क्या होता है ये तो ऑलरेडी ट्रू पॉजिटिव, ये आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से, सेंसिटिविटी आपकी होनी चाहिए ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, which is recall only. जो रिकॉल ओनली ना, तो उस हिसाब से आपकी सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मेरे हिसाब से स्लाइड में गलत है। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होना चाहिए नेट पे, नेट गो फॉर द सेंसिटिविटी फॉर्मूला। Where is the formula? ओके, सेंसिटिविटी, वेरी सेंसिटिविटी फॉर्मूला, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, आपका सेंसिटिविटी तो यही बता रहा है। ओके, स्पेसिफिसिटी सेम है एंड कुछ नहीं, सब बकवास है। ठीक है, तो जो हमने देखा उसके हिसाब से बेसिकली हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी दोनों के लिए इनवर्स है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है ना, इस स्लाइड की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एग्जैक्ट इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होती है। तो फार्मूला बेसिकली, फंडा बेसिकली ये है कि जब भी आप देखना चाहोगे कि आपको क्या चीज ज्यादा चाहिए, सो आप प्रिसीजन देखोगे, रिकॉल देखोगे, अपने स्पेसिफिसिटी देखोगे। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इन तीन फैक्टर के हिसाब से आप डिसाइड करोगे बेसिकली आपको कौन सी चीज ज्यादा चाहिए, कौन सी चीज आपको कम चाहिए, उस हिसाब से बेसिकली आप एडजस्ट करोगे। और आप एडजस्ट करोगे कैसे? तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आप जो थ्रेशोल्ड लेके चलते हो, बाय डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड लेके चलते हो 0.5। ओके, बाय डिफॉल्ट आपकी थ्रेशोल्ड होती है 0.5, दिस वन, जिसके बेसिस पर डिसाइड करते हो कि केस को आप पॉजिटिव मानोगे नेगेटिव मानोगे। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 आ रही है तो आप उसको पॉजिटिव केस मान लेते हो, और आपके लेस देन 0.5 आ रही है तो उसको नेगेटिव केस मान लेते हो। सो दिस थ्रेशोल्ड एक्चुअली डिफाइन करती है कि आप किस बेसिस पे आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव केस मानोगे। तो जब भी आपको बेसिकली अपनी थ्रेशोल्ड आपको अपनी प्रिसीजन, रिकॉल, स्पेसिफिसिटी आपको एडजस्ट करनी है ऑन द कॉस्ट ऑफ अनदर वन। ठीक है ना, तो उस केस में आप थ्रेशोल्ड को हमेशा ऊपर नीचे ट्राई करते हो। पहले मेरी 0.5 थी, 0.5 आप देखोगे आपका प्रिसीजन, लेट से आपका प्रिसीजन का स्कोर आपका 0.8 आ रहा है, आपको इसको इंक्रीज करना है। तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर करके देखोगे या इसको नीचे करके देखोगे। लेट से आपने इसको 0.6 किया, 0.6 करने के बाद लेट से आपका स्कोर लेट से 0.85 आ गया, दैट मींस यू आर गोइंग द राइट डायरेक्शन। फिर आप इसको और इंक्रीज करके देखोगे, लेट से आप इसका 0.9 आ गया, बिकॉज अगर प्रिसीजन आपको हाई चाहिए और आपको ये बेसिकली इंक्रीज करने की वजह से बेसिकली आपको करेक्ट रिजल्ट दे रहा है, तो देन यू गो फॉर द इंक्रीजिंग इट वन। लेट्स से 0.75 के ऊपर जाके फिर आपका कम हो जाता है, क्योंकि अब ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर वो क्या करेगा, सारे पॉजिटिव के सबको नेगेटिव बनाना स्टार्ट कर देगा। तो एक पॉइंट के बाद फिर आपके डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पॉइंट बेसिकली आपको उस पॉइंट पे जाके आपका लेट से आपका 0.75 के आसपास आपका बेटर काम कर रहा है, तो उसको फाइनली आपने थ्रेशोल्ड मान लोगे, और वो थ्रेशोल्ड फाइनली क्या होगी, उसके हिसाब से बेसिकली आपका फाइनल रिजल्ट आएगा।
तो आप जो ट्रेड ऑफ लेते हो प्रिसीजन रिकॉल, आपको क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, उसके हिसाब से बेसिकली अपनी थ्रेशोल्ड आपको आप एडजस्ट करते हो अपनी प्रिसीजन रिकॉल को बढ़ाने या घटाने के लिए। ओके गुड। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है 0.5 पे काम करता है। जब भी आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करोगे तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 0.5 के हिसाब से आता है। लेकिन अगर आपको अपने थ्रेशोल्ड इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू जो आपका आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट के ऊपर एक आप रैपर फंक्शन लगाते हो, उसके ऊपर फिर आप थ्रेशोल्ड चेंज करके फिर फाइनल आउटपुट दोगे। वो जब आप कोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली थ्रेशोल्ड कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में थ्रेशोल्ड चेंज करने का कोई तरीका नहीं होता है, उसमें बाय डिफॉल्ट 0.5 ही होती है, तो उसमें आप थ्रेशोल्ड एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके सो नाउ द अनदर फैक्टर इज योर आरओसी कर्व, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है। आरओसी कर्व आपको ऑन एन एवरेज आपको बताता है कि बेसिकली आपका मॉडल ऑन एन एवरेज आपका कैसे कितना अच्छा काम कर रहा है। Okay, this is receiver operating characteristics summarize the model performance, true positive rate और false positive। ये आपका जो ग्राफ बनता है true positive rate और false positive rate के बीच में बनता है। Okay, this is true positive rate and this is your false positive rate. So what was your true positive rate? True positive rate was true positive divided by true positive plus false negative. And what was false positive rate? That was your true negative, I think, and divided by just let me check what was that. False positive true negative. False positive then false positive plus true negative. That was your FPR. Okay. तो इस केस में ये आपका जो ग्राफ है टीपीआर एफपीआर के बीच में बनता है, ठीक है। टीपीआर एफपीआर आपको ऑलरेडी पता है। सो एरिया इस केस में अगर मैं पीआर और पीआर के बीच में अगर मैंने ग्राफ बनाई और ग्राफ जो बनता है बेसिकली आपका सारी की सारी आपकी जितनी भी थ्रेशोल्ड होती हैं 0.01 से स्टार्ट करेगा ये और पॉइंट से बढ़ाता बढ़ाता आपको 1 तक लेके जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे आपका पूरा ग्राफ बनाता है। तो आपको आपकी ऑन एन एवरेज आपको अपने मॉडल की परफॉर्मेंस पता चलती है कि ऑन एन एवरेज डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे मेरा मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। और जो एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व ये एरिया अंडर कर्व आपका बेसिकली डिसाइड करता है कि आपका मॉडल ऑन एन एवरेज डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे कैसे काम कर रहा है। तो एग्जैक्ट दिस सिंगल पॉइंट इज गिविंग मी द वैल्यू, लेट्स से ये मेरे लेट्स से 0.7 थ्रेशोल्ड पे है, तो 0.7 थ्रेशोल्ड पे इस समय इसका एफपीआर इतना आ रहा है और टीपीआर इतना आ रहा है, तो आपको स्पेसिफिक पॉइंट मिल जाता है ये। तो आप जब सारी की सारी थ्रेशोल्ड पे 0 से लेके 1 तक आप सारी थ्रेशोल्ड पे ग्राफ बनाओगे तो आपको पूरा ग्राफ बन के आ जाता है ऑन एन एवरेज, उसकी सारी वैल्यूज आपको मिल जाती है। तो आपका एफपीआर और टीपीआर आपकी जस्ट इनवर्स होती है। ओके तो इस केस में मेरा परफेक्ट ग्राफ क्या होगा? अगर मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए कि बिल्कुल मतलब कि मेरा जो ग्राफ बने वो ट्रू को ट्रू बताए और पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाए, मतलब कि सिर्फ मेरा इस बॉक्स में सारी वैल्यूज होनी चाहिए और इसमें होनी चाहिए, यहाँ मेरा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके तो उस केस में मेरा ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होगा मेरे पास? 1 और ये मेरा फॉल्स पॉजिटिव रेट 0। कैसे? टू फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव भी तो है इसमें 0/Tn। तो क्या हो जाएगा? 0/Tn। हाँ तो कितना हो जाएगा? 0 0/Tn हो जाएगा ना। और ट्रू नेगेटिव में तो 0 हो गया वैल्यू उसकी, तो गैप मेरा 0 हो गया। तो मेरा परफेक्ट कंडीशन वो है जिसमें कि मेरा बेसिकली हर पॉइंट पे इसको हर थ्रेशोल्ड पे इसको बेसिकली 1 वैल्यू मिलती चली जाए। दैट इज माय परफेक्ट पोजीशन। यानी अगर मैं परफेक्ट ग्राफ बनाने जाऊंगा तो मेरा ग्राफ मोर और लेस ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट ग्राफ कि ईच एंड एवरी थ्रेशोल्ड पे वो क्या करे कि ये स्ट्रेट ग्राफ आना चाहिए मोर और लेस इस तरीके से, ये कि उसका टीपीआर उसका हमेशा हाईएस्ट 1 होना चाहिए। ओके राइट मेरा ग्राफ मोर और लेस ऐसा बनना चाहिए, ये इस तरीके से, ये और ये ग्राफ मेरा जाना चाहिए कि थ्रेशोल्ड 0 पे क्या करना चाहिए उसको, बेसिकली थ्रेशोल्ड 0 पे क्या होना चाहिए उसका। अगर मैं थ्रेशोल्ड 0 रखता हूँ, अगर मैं थ्रेशोल्ड 0 रखूंगा तो उस केस में क्या करेगा? एक सिंपल सा केस लेकर चलते हैं। मेरे पास थ्रेशोल्ड 0 से 1 के बीच में होती है, अगर थ्रेशोल्ड मैंने 0 कर दी तो उस केस में क्या करेगा वो? 0 को भी अगर थ्रेशोल्ड मेरी हाँ तो वही होगा, वो सबको ही पॉजिटिव करने लग जाएगा ना, क्योंकि 0 सबको पॉजिटिव कर देगा। तो उस केस से मेरा ये मेरा ट्रू पॉजिटिव रेट कितना हो जाएगा? मेरा 1 राइट।
क्योंकि ट्रू पॉजिटिव सारे मतलब वही बोल रहे हो ना सर आप, जो 0.5 है हमारा उसी को 0 करना है ना अगर थ्रेशोल्ड। हाँ, उसको हमने थ्रेशोल्ड को 0 कर दिया तो क्या करेगा, अब सारे के सारे केस को पॉजिटिव बताएगा, किसी को भी नेगेटिव केस नहीं बताएगा वो। हाँ ठीक कर रहा है ना वो। तो उस केस में क्या होगा मेरा, तो उस केस में फिर नीचे वाले में तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि कुछ नेगेटिव को किसी को तो ट्रू नेगेटिव करेगा ही नहीं, फिर वो 0.0 इनफाइनाइट हो जाएगा। राइट। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए होता है, मैं थ्रेशोल्ड को मैं ये क्या करता हूँ, 0 से लेकर सारी थ्रेशोल्ड में ये वैल्यू देता है, ये सारी थ्रेशोल्ड की मेरी वैल्यू नहीं, देता है। जैसे हमने अगर हमने थ्रेशोल्ड 0 रख दिया तो ट्रू पॉजिटिव्स तो सारे ट्रू पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई भी फॉल्स नेगेटिव नहीं हाँ, होगा, फॉल्स ठीक है, नेगेटिव ये मेरे 1 जीरो हो हो जाएंगे, जाएगा। फॉल्स नेगेटिव मेरे कितने हो जाएंगे, वो 1 हो गया, बट हमारा एट द सेम टाइम अगर मैं FPR देखो, क्योंकि वो उसके साथ ग्राफ बन रहा है, तो फॉल्स पॉजिटिव कुछ नहीं होगा, ट्रू नेगेटिव भी कुछ नहीं होगा, ये हाँ सभी ट्रू पॉजिटिव नेगेटिव मेरा, ट्रू नेगेटिव मेरा फिर 0 हो वो जाएगा। 0.0 अनडिफाइंड हो जाएगा फिर। नहीं, यहाँ पे लेके चलते हैं, अगर मैंने इसको 0 मतलब ट्रू पॉजिटिव मेरे कितने हो जाएंगे, जो मेरे ऑलरेडी सारे ट्रू पॉजिटिव में चले गए मेरे, ठीक है। लेकिन फॉल्स नेगेटिव मेरे कितने हो जाएंगे टोटल केस, तो मेरा कितना आ जाएगा ये केस मेरा, लगभग कितना वैल्यू आई मेरी इसकी, लेट्स से मेरे पास 500 मेरे पास पॉजिटिव केस थे, लेट्स से 600 और 400 मेरे पास नेगेटिव केस थे, ठीक है। ये मेरे पॉजिटिव केस हैं और ये मेरे नेगेटिव केस हैं। तो उस केस में अगर वो सबको पॉजिटिव बता रहा है तो मेरी ट्रू पॉजिटिव मेरे कितने हो गए, 600 ही रहे, और ट्रू पॉजिटिव मेरे 600 प्लस 400, मेरे फॉल्स नेगेटिव कितने हो गए, फॉल्स नेगेटिव कितने मेरे, ये आपने इसमें बताया नहीं अभी। नहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मेरे पास 600 केस हैं, लेकर 600 और 400 है मेरे पास, वो सबके सबको पॉजिटिव बता रहा है, एवरीवन इज कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव, क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड मैंने 0 ले लिया, सबको पॉजिटिव बता रहा है वो, ठीक है, परफेक्ट। तो मेरे ट्रू पॉजिटिव कितने होंगे इस केस में, 600/600 प्लस 400। 600, फॉल्स नेगेटिव कितने होंगे मेरे, नेगेटिव एक भी नहीं होगा ना, फॉल्स नेगेटिव यानी किसी को भी फॉल्स नेगेटिव नहीं बता रहा है, तो कितना हो जाएगा मेरा इस केस में, ये 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1, राइट, क्योंकि थ्रेशोल्ड 0 है ना। हाँ थ्रेशोल्ड 0 है, तो फॉल्स नेगेटिव कितने हो गए मेरे, यानी पॉजिटिव थे तो नेगेटिव बता रहा था, कुछ कर ही नहीं रहा, तो फॉल्स नेगेटिव मेरे 0 हो गए, हाँ हाँ मेरा ये हो गया। अब मैं आता हूँ FPR पे, FPR कैसे बिहेव करेगा इस केस में, FPR मेरा FP प्लस TN, फॉल्स पॉजिटिव कितने मेरे 0, ये 0 है कितने हाँ, नहीं यार, 0 ही होंगे। फॉल्स पॉजिटिव कितने में, नेगेटिव थे लेकिन उनको पॉजिटिव बता रहा है 400, फॉल्स पॉजिटिव वो होता है ना कि जो नेगेटिव थे लेकिन उनको पॉजिटिव बता दे रहा था, फॉल्स पॉजिटिव, राइट, 400, ट्रू नेगेटिव कितने हैं मेरे, ट्रू नेगेटिव ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहा ना। नहीं यार, सब बहुत कंफ्यूजन हो चुकी है। ओके, व्हाट इज माय ट्रू नेगेटिव, सर आप ऐसे 4 वाला बॉक्स बना लो, 4 वाला बॉक्स बना लो, उससे हाँ क्या हुआ, कौन बोला, दीपा का चार्ट पढ़ो, सही बोल रही है, दीपा सही बोल रही है, तो ठीक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी सिर्फ ये समझ लो जो आरओसी कर्व होता है बेसिकली लगा FPR और TPR के बीच में बनता है, इसको डिटेल में अगली बार डिस्कस करेंगे। तो FPR TPR का आपका जो ग्राफ बनता है बेसिकली ये मोर और लेस आपका ईच एंड एवरी थ्रेशोल्ड में बनाता है वो, तो थ्रेशोल्ड में बेसिकली अगर आप स्टैंडर्ड ग्राफ बनाओगे जिस केस में आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चीजें काम कर रही हैं, तो उस केस में आपका ग्राफ जो जाता है इस तरीके से जाता है, ये यानी कि आपका जो एरिया ऑफ कर्व होगा आपका 1 आएगा, उस केस में मतलब कि बेसिकली आपको ट्रू को ट्रू बता रहा हूँ, नेगेटिव को नेगेटिव बता रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, उस केस में आपका ग्राफ का स्कोर आता है आपका 1 एग्जैक्टली। ओके, जब बेसिकली अब जब डिफरेंट थ्रेशोल्ड पर निकालोगे तो बेसिकली आपके ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव आपके ऊपर नीचे शिफ्ट होते चले जाएंगे, उस केस में आपका एरिया ऑफ स्कोर आपका कम होता चला जाएगा, इस केस में जो भी आपके जिस तरह से बिहेव कर रहा होगा, तो उस केस में बेसिकली आपका जो आपने ये ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के बीच नीचे का जो भी आपका एरिया आता है वो एरिया आपको बेसिकली बताता है कि आपका मॉडल ऑन एन एवरेज डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे कैसा काम कर रहा है। अगर आपका AU से अगर आपका ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब मोर और लेस आपका जो आपने मॉडल बनाया ऑन एन एवरेज वो ईच एंड एवरी थ्रेशोल्ड पे आपका मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आपका स्कोर आपका बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब आपका मॉडल अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जनरली आपको अपना ऑन एन एवरेज अगर आपको स्कोर देखना है तो आप अपना AUC एरिया अंडर कर्व उठा के आप देख सकते हो, तो एरिया अंडर कर्व आपको जनरली आपको मोर लेस आपका आइडिया आपको दे देता है। So ROC AUC is useful when there is a class balance,
अगर आपकी क्लास इम्बैलेंस है तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्लास आके अगर बैलेंस है तो आपको बहुत अच्छा आपको आइडिया दे देता है ये। ओके, अगर आपका डाटा इम्बैलेंस है तो उस केस में आपको फिर भी आपको प्रिसिजन या रिकॉल ही आपको देखना पड़ेगा। तो आपको प्रिसिजन रिकॉल भी देखोगे, एयू भी आपको थोड़ा सा आइडिया आपको दे देगा, लेकिन फाइनली आपको यू हैव टू गो फॉर द प्रिसिजन रिकॉल। ओके, तो एयू ऑफ वंडर कर्व आपसे इंटरव्यू पूछ लेते हैं कि वारी एंड ऑफ कर्व, ठीक है। तो आप सीधे, आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखनी, तो आप सीधे ऑन एंड एवरेज आपको देखना है मॉडल कैसे काम कर रहा है, आप सीधे आरओसी कर्व देख लो, ईयूसी निकाल लो, ईयूसी आपको पता चल गया एंड ऑफ कर्व आपका ज्यादा आ रहा है तो आपको ऑन एंड एवरेज आपका मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, कम है तो मतलब यू हैव टू रीट्यून योर मॉडल। उसके बाद फिर आपने मॉडल का ऑन एंड एवरेज आपने एक्यूरेसी निकाल ली, ठीक है। उसके बाद देन यू कैन चेंज द थ्रेशोल्ड, अपने अपने प्रिसिजन और रिकॉल को ऊपर नीचे करने के लिए फिर आप थ्रेशोल्ड चेंज कर सकते हो उसके बाद फिर। ओके, तो आरओसी आपको बताता है ऑन एन एवरेज आपका मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। ओके, सिंगल नंबर समरी ऑफ क्लासिफायर, ये आपको सिंगल नंबर में आपकी समरी बता देता है कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। एयूसी सर एओसी और एयूवी क्या है? कहाँ गया ये एरिया? जैसे जो आरओसी है वही एरिया अंडर द कर्व है एयूसी, तो ये एओसी जो ट्रायंगल बना हुआ है वो एओसी क्या लिखा हुआ है? कहाँ है एयूसी? एयूवी ये तो आपका नहीं, यहाँ लिखा हुआ ड्राइंग, एओसी क्या है? अरे लिखने की प्रॉब्लम हो गया इनके, एयूसी है ये एरिया अच्छा अंडर ठीक कर्व है है, पूरा, ठीक है ना, जैसे एरिया अंडर कर्व हाँ। है ना। और वी क्या है? एयूवी। ये भी लिखने की मिस्टेक है इनकी, एयूसी है सब ये, ठीक है ना। तो ये अंडर कर्व है ये सब, ठीक है ना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कोई अलग से टर्म है एयूवी, मैंने तो आज तक नहीं सुनी है एयूवी एंड एयूसी, है शायद कुछ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। तो एयूसी आपको ऑन एन एवरेज, आपको सिंगल समरी आपको बता देता है कि ऑन एन एवरेज आपका डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे आपका मॉडल कैसे काम कर रहा है। उसके बाद आपके पास एक सिंगल समरी आपके पास आ गई, सिंगल समरी के बाद फिर आपको उसको एडजस्ट कर सकते हो थ्रेशोल्ड को, ऑपरेशन रिकॉल जो आपको चाहिए उसको घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो यू कैन डू वन थिंग, ओके। हाँ, ये वाला ये इसमें लास्ट में लिखा हुआ है ना, प्रिसिजन रिकॉल कर्व्स फॉर क्लासिफिकेशन इन पाइथन, ये मशीन लर्निंग वास्तविक बहुत अच्छा एक आर्टिकल है जिसमें कि आपको बेसिकली, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा है प्रिसिजन रिकॉल कर्व्स में, थोड़ी चीज आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, तो यहाँ पे आप चले जाना। सो इट विल गिव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीजें डिटेल में चीजें बताई है, आप इस बार पूरा उसको पढ़ लोगे तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी इस पे, ठीक है ना, कि आरओसी कर्व्स एंड प्रिसिजन रिकॉल कर्व्स, तो आपको बता देगा आरओसी कर्व कैसे काम करता है और प्रिसिजन रिकॉल कर्व्स कैसे काम करते हैं। जैसे हमने आरओसी कर्व बनाया है ऐसे हम प्रिसिजन रिकॉल कर्व भी बना सकते हैं, ठीक है। जब आप कोड करोगे तो आपको पता चलेगा प्रिसिजन रिकॉल कर्व्स कैसे काम करता है और आरओसी कर्व कैसे काम करता है। तो जस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल, ठीक है ना, और इसको एक पढ़ के देखना। फिर भी अगर आपको बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन लगता है कि प्रिसिजन और रिकॉल में या आरओसी कर्व्स में, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में फिर से कवर कर लेंगे, ओके। सो दैट इज नॉट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर या पूरी स्लाइड 1 to 1 एक बार पूरी पढ़ लोगे तो आपको वैसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कहीं कुछ कंफ्यूजन लगता है तो गो फॉर दिस आर्टिकल, फिर भी चीजें समझ में नहीं आती है तो वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके ओके। सो आई विल स्टॉप नाउ, ओके। तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग।